So my first question to Ashik, there is so much romance in your name itself, Ashik. So tell me the story behind Ashik and who gave you this name, Ashik? My grandmother, my mom's mom. तो आने वाला 1-2 साल में बहुत सारे बॉलर्स आएगा केरला से, कट्टर बॉलर्स. So ऐसा कौन सा बॉलर को आपने फेस किया और आपको लगा यार ये क्या क्वालिटी, आई कांट प्ले दिस बॉलर? फरमान करनाल. 2 साल से टॉप गेम में हो. बेस्ट. कितना कमा लेते हो? मैं अगर रिवर्स स्वीप नहीं खेलता ना तो मेरे लिए थोड़ा इजी लगता है कोई भी बैट्समैन तो नीलेश भाई को मैंने मैसेज किया, नीलेश भाई मैं ऐसे ऐसा प्लेयर हूँ, मेरा बैटिंग की वीडियो भेजा. नीलेश भाई कैसे भी मेरे को एक चांस दे दो. मैंने सोचा ही नहीं उसने चांस देगा. तुरंत उसने बोला कि आ जाओ कोलकाता आ जाओ. Because Ankur Bhaiya used to know he'll stand up first and he'll go back suddenly and he'll collect the ball and he'll throw like this. No stumping. मैं देख रहा हूँ तुम एक्शन तो डाउटफुल ही है, थोड़ा ख्याल रखो. मैंने सोचा ओके सर. तो एक बॉल के बाद उसने मेरे को बोला वो बॉल मत डालो. मैंने बोला क्या हो गया वो बॉल में? वो बॉल थोड़ा डाउटफुल है. मेरे को इतना गुस्सा किया. मैंने बोला सर अगर नो बॉल है तो आप नो बॉल बुलाओ. क्या मैंने बोला मेरे को जो चाहिए मैं वो डालेगा. बेस्ट ओपनर, बेस्ट फिनिशर, बेस्ट ओपनिंग बॉलर, बेस्ट कीपर. हु इज बैड कीपर फॉर यू? Name few of those. Ashik Ali, welcome to the show. How are you? Thank you so much first of all and I'm feeling so good. Feeling so good? Even I'm feeling so good to have you here. So my first question to Ashik, there is so much romance in your name itself, Ashik. So tell me the story behind Ashik and who gave you this name, Ashik? My grandmother, my mom's mom. So she wanted me to give this name like आशिक अली. मतलब शायद उसने किधर भी सुना होगा. वो बोल रहे कि ये नेम तो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है. तो she was very adamant. So her name is Safiria. So she was like she told my parents to give this name. Ashik. Ashik. And what's the meaning in Kerala is also same? It's Ashik means I lover. don't think she had that thing in her mind, but she used to watch these all Hindi movies and all. So I think maybe उसने वहाँ से मिला होगा शायद ये नेम. Or what about you? Also watch Bollywood movies? Not very much. I watch only Malayalam movies. Malayalam and South Indian Tamil and kind of Bollywood movies I watch, but not very much. So आपकी नाम की तरह you are not Ashik? मैं तो गाना तो बहुत सुनाता है मगर मूवीज ज़्यादा नहीं देखता है. Ashik, tell me a little more about the culture in Kerala. Culture in the sense I'm talking about cricket and culture while growing up, how you see cricket. Cricket in Kerala is so good. I'm talking about two things. I'm talking about the tennis cricket and how you see tennis cricket and how you see leather cricket. Tennis cricket in Kerala is not as good as what you see in Maharashtra and the middle part of India and the northern part of India. It's kind of poor. Compared to the other states in southern India like Tamil Nadu and Karnataka, it's so good. In tennis ball, leather ball cricket is so good. So leather ball cricket in Kerala is comparatively was not that good, but now it is getting better. They have this KCL and all starting. And tennis ball cricket is not that good, I feel, because the grounds are very small. You see in all India level tournaments, Kerala से ज़्यादा player लोग खेलता ही नहीं है क्योंकि जो उधर का क्रिकेट थोड़ा अलग ही है. लोग ज़्यादा हम शुरू होते हैं हल्का बॉल से खेल के, तो बाउंड्री बहुत छोटा होता है, सॉफ्ट बॉल. तो बैटिंग थोड़ा अलग ही है. टेक्निक इधर देखो बड़ा बड़ा ग्राउंड है तो जोर से घुस के मारना पड़ता है, हर शॉट खेलना पड़ता है, 360 खेलना पड़ता है. केरला में तो ये हल्का बॉल से छोटा बाउंड्री है ना, तो ऐसे से लॉफ्ट करके जहां बॉल आता है थ्रू द लाइन मारेगा तो छक्का. तो बैट्समैन भी वही आदत आ गया. तो मगर अभी थोड़ा जिन लोग बाहर आके खेल रहे हैं तो थोड़ा सीख रहे हैं. और केरला में ज़्यादा से लोग काम के लिए जीसीसी जाता है तो वहाँ भी थोड़ा अलग ही है. तो केरला में क्रिकेट अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है. अभी सबको समझ में आ गया थी क्योंकि आफ्टर द ISPL कितना कमा सकता है, कितना नाम है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. एंड टेनिस बॉल क्रिकेट कभी भी कोई सोचा नहीं ऐसा प्रोफेशनल कर सकता है. महाराष्ट्र सब ये एरिया में तो थोड़ा पहले मतलब प्लेयर्स यूज्ड टू, बट इन केरला अभी भी लोग सोच रहे नहीं कर पाएगा. मगर अभी थोड़ा मतलब इतना टूर्नामेंट्स और लीग्स आ रहे तो थोड़ा शायद thinking थोड़ा change हो रहा है. तो it's good to see that. I'm just curious, you said like in Kerala the tennis ball cricket is not that good. People not seeing tennis cricket as a profession.
because money is not there. Live matches are not covered in Kerala. So how you come in the picture? Actually, I had no idea how I'll reach here and all playing all these tournaments. So in Kerala, I was playing really well. And 2017, You're playing softball cricket, I started playing in softball cricket only. and when was it? Till 2013, 14 and all, I was playing more of softball cricket only. So then a few hard tennis tournaments started to happen in Kerala, big tournaments. So I wanted to play in that, but I was a pure batsman by then. You were pure batsman. Then in Kerala, because the grounds were small, and in my childhood I used to bowl fast, then slowly I turned into the spinner ball. So I used to bowl like 4th or 5th bowler, or occasionally. So I was playing really well in 2016, 17, 18 season. I was batting really well in Kerala. Slowly I started playing in the bigger teams, and I ended up playing in a team called Shark Friends Kerala. It's from my hometown. The owner is Krishna Dev, is from my home only. So he helped me a lot. So I started playing for this team. So in Kerala in 2018-19 season, we used to have 4 or 5 all India level tournaments. So for that, बाहर से खिलाड़ी लोग आते थे. तो कृष्णा सर, अंकुर भैया, ऐसे बड़े लोग नाम आते थे हमारे साथ खेलने के लिए, हमारे ऑपोजिट भी खेलने के लिए. तो ऐसे ही 2019 में सुनील चावरी भी हमारे टीम में था. तो उस टाइम मैंने उधर बैटिंग अच्छा किया था. मैं सुनील भाई को रिक्वेस्ट किया, मेरे को मतलब कभी भी मौका दे दो बाहर खेलने के लिए. मैं फॉलो कर रहा था इन सबको, इन अंकुर भाई को, सबको. तो इनका स्टोरी सब देख रहा था मैं. हर टाइम फ्लाइंग हियर एंड देयर ऑल ओवर इंडिया. So I just wanted, like, I felt like I also wanted to do like that, to travel around India, play all the tournaments, all the big tournaments. So then Sunil Bhaiya told me, बोला था मेरे को कोलकाता आप खेल सकते हैं, क्योंकि कोलकाता भी ग्राउंड बहुत छोटा है. That time you were just playing as a batsman. As a pure batsman. Pure batsman, not as a bowler. 2019 as a pure batsman. And Sunil Bhaiya बोला, It's very difficult to imagine you're playing as a pure batsman. even because myself whenever now maybe अभी सोच रहा था यार मैं कैसे चला गया बैट्समैन as a pure batsman. मेरे को भी ऐसा हादसा आ रहा है. 2019 में तो सुनील भैया बोला ओके देखेंगे. तो नेक्स्ट वीक अंकुर भैया भी आ रहा था केरला एक टूर्नामेंट खेलने के लिए. तो बाई लेग के लिए अंकुर भैया हमारा ऑपोजिट था, एंड हम मैच हार गए, मगर बाई लेग मैंने अंकुर भैया का बॉल में 2-3 छक्का मारा. तो अंकुर भैया भी मतलब ऐसे जोर से नहीं, ऐसे लॉफ्ट करके मारा. तो अंकुर भैया भी बोला ओके ठीक है, ये तो कोलकाता खेल सकते हैं, तो लेके आओ. तो 2019 में कोलकाता राजनंदिनी कप, वो कोलकाता का वर्ल्ड कप बोलते हैं, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. तो वो खेलने के लिए मुझे बुलाया, मगर थोड़ा यूज टू होने के लिए, आदत आने के लिए एक 5-6 दिन पहले मैंने गया. तो 1-2 टूर्नामेंट खेला. फिर ये राजनंदिनी में पहला मैच में मैंने मैन ऑफ द मैच हुआ मेरे बैटिंग की वजह से. पहले मैच में, फर्स्ट मैच में. उस टीम में था सुनील चावरी भाई, अंकुर भैया, फरमान करनाल, सैंडी गाजियाबाद एंड विशु ठाकुर. Oh, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आफ्टर दैट, उसके बाद वो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ. इसके बाद इतना चांस नहीं मिला, इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया, तो वापस आ गया. फिर भी केरला में ऐसे खेल रहा था. फिर ये लॉकडाउन सब हो गया. फिर भी मेरे को मतलब मेरा मन में था बाहर खेलने का. फिर अंकुर भैया को, सबको मेरा बैटिंग देखा, तो उनको भी पता होगा मतलब इतना स्पेशल नहीं है, फिर भी खेल सकता है. तो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि केरला से एक प्लेयर को लेने के तो एक्सपेंस ज्यादा है, वैसे भी उनको खर्चा. आपने कहा कि बैटिंग ओके था, बट दैट वाज योर थिंकिंग बैटिंग ओके था, और इन योर माइंड यू आर सचिन तेंदुलकर? बैटिंग वाज ओके ओनली इन माय. मैं भी वही सोच रहा था, क्योंकि इसके बाद मेरे को इतना बड़ा चांस भी नहीं मिला. अगर बैटिंग इतना अच्छा, तो चांस तो मिलने वाला है ना. फिर मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगा कि केरला के जैसे नहीं, बाहर तो बॉलिंग तो क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, अगर थोड़ा परफॉर्मेंस करना है तो बैटिंग इतना अच्छा होना चाहिए. मेरा बैटिंग उतना अच्छा है ही नहीं. कुछ तो आपने खुद रियलाइज किया, मेरा खुद रियलाइज किया. हाउ यू कम टू दिस कंक्लूजन? बिकॉज ये कोलकाता में मैंने खेला था ना 3-4 while watching others batting, like and facing the bowlers, they were so quick and they were very accurate, and I didn't had that many of shots. So मैंने सोचा अगर आगे जाना है तो बहुत शॉट्स, मतलब बैटक शॉट, रिवर्स सब खेलना पड़ेगा. मैंने मतलब फिर भी 1-2 साल केरला में ऐसे खेल रहा था. ये मैच के बाद मैं सैंडी को मैसेज किया, सैंडी मेरे को बाहर खेलना है, ऐसे भी कोई चांस दे दो सैंडी. तो सैंडी ने बोला एक मैनेजर का नंबर भेज रहा हूँ, आप ही बात करो.
तो उसने मेरे को मैसेज किया नीलेश परदेसी का नंबर। तो मैंने बोला नीलेश भाई, तो क्या हो गया ना, तो केरला में दूसरा एक अच्छा टीम है अटलस यूटीसी कुवैत, जो बाहर से प्लेयर सब उसमें ही खेलता है, उसके लिए भी प्लेयर्स को नीलेश भाई लेके आता है। तो थोड़ा मतलब मिल के बाद में भी मिला है नीलेश भाई को मैंने। तो नीलेश भाई को मैंने मैसेज किया, नीलेश भाई मैं ऐसे ऐसा प्लेयर हूँ, मेरा बैटिंग की वीडियो भेजा, नीलेश भाई कैसे भी मेरे को एक चांस दे दो। मैंने सोचा ही नहीं उसने चांस देगा, तुरंत उसने बोला कि आ जाओ कोलकाता आ जाओ। मैंने बोला मेरे साथ एक बॉलर भी है, हमारा गांव में मेरा एक बॉलर था मुत्तू अंगोला बोल का, मलिक एक्शन, अच्छा बॉलिंग करता। मैंने बोला हम दोनों आए कि नीलेश भाई, उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। मेरा शौक हो गया, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा मैनेजर, मतलब प्लेयर को लेके टीम बना रहा है, मैनेजर है नीलेश सर, मेरे को इतना जल्दी चांस दे रहा है। आपने नाम सुना था नीलेश परदेसी का पहले? नहीं सुना था, नहीं सुना था। वो तो जब सैंडी गाजियाबाद मेरे को नंबर भेज रहा था पहले, उसी टाइम ही सुना मैंने। वो हमने गया कोलकाता, के करियर बनाए उन्होंने। ओ नीलेश भाई ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि नीलेश भाई ने वो प्लेटफॉर्म दिया मेरे को, मतलब ऑल इन द लेवल टूर्नामेंट खेलने का। तो कभी भी मैं थैंकफुली रहता नीलेश भाई को। उसने बुलाया कोलकाता में, एक टूर्नामेंट था कोलकाता चैंपियंस ट्रॉफी करके, तो पहला मैच में मैंने अच्छा बैटिंग किया, दूसरा मैच में उसने मेरे को बोला कृष्णा सर के साथ ओपनिंग जाओ। मेरे इतना मतलब शौक हो गया, खुश हो गया, क्या बोलूं। एक दो मैच अच्छा खेला, फिर एक दो मैच गंदा भी हुआ। तो बैट्समैन का क्या ना, अगर इतना नाम नहीं है तो एक दो मैच गंदा हुआ तो इतना बैट्समैन वेटिंग है 2 नंबर 3 नंबर पे, तो उन लोग आगे गया खेला। ऐसे ही वो 2-3 टूर्नामेंट खेला, मगर मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कृष्णा सर के साथ। ओपनिंग कृष्णा सर के साथ मतलब मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज था। फिर दुर्गापुर धमाका, वो दुर्गापुर में होता था 10 लाख का टूर्नामेंट, उसमें भी मैंने ऐसे प्योर बैट्समैन खेला। फिर उसी टाइम मेरा बैटिंग इतना अच्छा नहीं था, एक ही मैच में चांस मिला, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर मिलेगा तो भी मेरे को पता था मेरे से नहीं होगा ये, मतलब बॉलिंग इतना अच्छा था, ग्राउंड इतना बड़ा था, मेरे को पता था ये तो मेरे से नहीं होने वाला है। ड्यूरिंग द मैचेस हमारा टीम में था रजदीप जडेजा, गुजरात वाला पतला। तो ड्यूरिंग द मैचेस में इसका बॉलिंग देख रहा था, मतलब रूम के नीचे ऐसा हम बॉलिंग डालता है ना, इस चाय पीने के टाइम जाता है, तो उसी टाइम में उसने ऐसे बॉलिंग डाल रहा था, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन और तेज वाला। तो मेरे साथ आया था ना मुत्तू, मैंने उसको बोला अरे मुत्तू ये तो मेरे को भी पता है ये लेग स्पिन ऑफ स्पिन, तो शायद मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं अगर कुछ इम्पैक्ट देना टीम को, हर टूर्नामेंट में चांस मिलना है, तो शायद ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा। बैटिंग से वैसे मेरे को नहीं होगा, मेरे को हर टूर्नामेंट खेलना था, बैटिंग करना ऐसा कुछ ये नहीं, शौक नहीं था। Just wanted to play all in the tournament, travel around and to create impact in the team I'm playing, to help them win. So if being bowler is also good, so I was watching him closely, Rajdeep Jadeja, and in that Durgapur Dhamaka tournament we reached the finals. And in finals, that's the time I realized the impact of this Rajdeep Jadeja in that team, that as a variation spinner. Kiran Pawar was batting really well. He was smashing Ankur Bhaiya for sixes, and I thought like हम तो मैच हार जाएगा यार, किरण पवार तो पूरा मार के हमको बाहर, मतलब हमको हरा देगा। इस टाइम वो राजदीप जडेजा आ गया, 1-2 बॉल डॉट किया, ऑफ स्पिन लेग स्पिन डालकर तीसरा बॉल उसका विकेट लिया, मैच हम जीत गया, पूरा पलट दिया राजदीप 1-2 ओवर में। मैंने सोचा अरे यार दिखने में इतना पतला है, कुछ काम तो नहीं कर रहे इसमें, बस लेग स्पिन ऑफ स्पिन डाल रहे, इतना इम्पैक्ट तो मुझे भी आता है, तो मुझे भी आता है, मगर हल्का बॉल में आता है, भारी बॉल में नहीं। फिर मैंने गया केरला, पूरा इसमें प्रैक्टिस किया, हर दिन 10-12 ओवर। मेरा छोटा भाई था, ट्विंस, उनको बोला मूसा, अभी उनका नाम, मैं बोला खेलो कितना चाहिए खेलो, मैं बॉलिंग डाल। इसके पहले मैं बैटिंग कर रहा था, बोल रहे थे उनको बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि मैं बैट्समैन था ना। इसके बाद मैं बोला मैं बॉलिंग करेगा, तुम लोग बैटिंग करो। मैं बॉलिंग इतना किया, बड़े लेंथ में, हार्ड टेनिस में, लेग स्पिन ऑफ स्पिन, तो मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे को हो गया सब, मेरे पास मतलब है लेग स्पिन ऑफ स्पिन और तेज वाला है, मगर मौका नहीं उनको दिखाना है, और उन लोग चांस नहीं देगा, क्योंकि मेरा बैटिंग इतना अच्छा नहीं था। और तुरंत में जाके उनको बोलेगा नीलेश भाई अगर मैं अभी बॉलर है तो नीलेश भाई वो गाली देगा ही देगा, चुप तुम क्या भाई सब बकवास बात कर रहे, ऐसे ही देगा। तो बाइलेक क्या हो गया, नहीं मैं फिर वैसे भी इंस्टाग्राम में बहुत मैसेज आ रहा है ना, मतलब खेलने के लिए मेरे वीडियो देखकर, तो कोलकाता में खेलने के लिए चांस मिला। तो छोटा टीम है, छोटा टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो मैं मुत्तू अंगोला और हमारे साथ में 3-4 केरला वाले लोग गया, ऐसे खेल रहा था, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिला। फिर एक बार केरला में एक बड़ा टूर्नामेंट था MCL,
वो टूर्नामेंट खेलने के लिए वो अटलस टीम ने नीलेश भाई को बोला, नीलेश भाई पूरा टीम को लेके आया इसका, उसमें मेरे को भी खिलाने दिया अटलस भाई वो प्रजित सर। तो वो एक अच्छा मौका था, क्योंकि वो प्रजित सर ने नीलेश को बोला आशिक को एक ओवर देना ही देना है, कि तुम कुछ भी करो, बैटिंग करो, बॉलिंग करो, बाकी एक और आशिक को देना है। तो वो मेरे लिए अच्छा हुआ। एक ओवर नीलेश भाई ने सोचा होगा अरे क्या ओके रहने दो, स्पॉन्सर ने बोला है ना। तो मैंने बॉलिंग किया, बहुत अच्छा हुआ, ऑफ स्पिन लेग स्पिन बहुत अच्छा गया। तो पहले वो सोचा था एक ओवर देने के लिए, फिर उसने बोला तुम 2 ओवर डालो। तो वो पूरा टूर्नामेंट मेरा बॉलिंग बहुत अच्छा हुआ। तो फिर नीलेश भाई को थोड़ा आइडिया कि अरे इसको बॉलिंग कर सकता है। तो फिर मैं कोलकाता में भी गया, ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट खेल रहा था, उधर भी बॉलिंग ठीक हुआ। फिर मेरे को नीलेश भाई से फिर दोबारा चांस दिया, फिर ऐसे ही फिर उसने ISPL में भी मेरे को बुलाया सीजन फर्स्ट में। वो भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं ईस्ट जोन में था। मैंने ट्रायल दिया बेंगलुरु साउथ जोन में, मगर फिर सब लोग बोल रहे थे अरे यार ये तो महाराष्ट्र ही है, हमको कुछ मिलेगा ही नहीं चांस। केरला वाले ऐसे बोल रहे थे। केरला से बहुत लोग रजिस्टर किया था, कोई भी ये ट्रायल के नहीं गया। मैं भी नहीं गया। मैं उसी टाइम कोलकाता में सीजन क्रिकेट खेल रहा था। मैं और हमारा गाँव का 5 लड़का था हमारे साथ। मैंने देख रहा था बेंगलुरु का ट्रायल का दिन, मैं उधर खेल रहे, मैंने नहीं गया। मैंने सोचा इतना पैसा खर्चा करके वैसे भी हमको मिलने वाला है ही नहीं, तो कोलकाता में खेल रहा था। फिर एक दिन क्या हो गया, हम कोलकाता से थोड़ा दूर मैच खेलने के लिए जाना था, समहाउ वो तो कैंसिल हो गया। तो सुबह 9 बजे निकला, वैसे भी 11 बजे वापस आ गया, रूम में पहुंच गया। बस मैं मोबाइल देख रहा था, उस टाइम मैंने देखा ISPL का ट्रायल होने वाला है कोलकाता में, वो डेट पे, वो दिन पर 5 बजे तक टाइम है। मैंने सोचा आज तो मैच है ही नहीं, तो क्या करूँ। फिर मैं ऐसे 10-15 मिनट सोचा, फिर मैंने 12 बजे हो गया। वहां से वो जगह का नाम हेरिया ऐसा कुछ, वहां से 3-4 घंटे का रास्ता है बस में कोलकाता आने के लिए। मैंने पता नहीं मेरे को कैसे क्यों वो सोच आ गया। मैं सोचा कुछ भी हो, मैं ऐसे निकल रहा, मैं बैग में शू पूरा पैक करके मैं निकल गया। 4:30 बजे मैं ग्राउंड आ गया। मैंने उनको बोला सर मैंने बेंगलुरु में दिया था, मेरे को इधर तो करने मौका दे दो प्लीज। मैंने रिक्वेस्ट किया, तो उसने बोला सीनियर सेलेक्टर के साथ बात करो। लास्ट 5-10 मिनट था, तो उसने बोला ओके तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं बॉलिंग करेगा। तो बोला ओके ज्यादा टाइम नहीं है, करो एक ओवर करो बस, ऐसे ही। इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। So I did this leg cutter, 1 ball, off cutter and again leg cutter and off cutter, some 4-5 ball मैंने डाला है। By leg all got beaten. Batsman couldn't touch any ball. So the first selection is okay done. So I was very happy. And वैसे ही मुंबई में गया, उधर भी अच्छा हुआ। फिर फाइनल राउंड आ गया, वो ट्रायल मैचेस कोलकाता में था। वहाँ बहुत डेंजरस जोन था, क्योंकि मैं ईस्ट जोन में आ गया। मैं उधर तो वो दिल्ली धमाका का सब प्लेयर उधर है, और कोलकाता यूपी का बहुत अच्छा प्लेयर, मतलब इतना बड़ा नाम वाला प्लेयर है उधर। तो मैंने सोचा अरे यार यहाँ तो मैं फंस गया, तो क्या कर। somehow managed to bowl recently pretty well, तो अच्छा किया है। फिर भी मेरे को नहीं लगता था ऑक्शन में कोई लेगा मुझे, मगर उसी टाइम नीलेश सर ने मुझे लिया। वो तो फिर भी बहुत थैंकफुल है नीलेश सर के लिए, क्योंकि उसी टाइम उसने अगर नहीं लिया तो ज़्यादा चांसेस बाद में नहीं मिलने वाला था। उसके बाद फिर ठीक हुआ, अच्छा हुआ। इसके बाद अच्छा हो, तो ये अपनी पूरी जर्नी ISPL की जर्नी आपने बता दी। But the thing I want to know from you, Ashik, like you have been bowling with the soft ball and you have been bowling with the hard ball. For a cutter bowler, which is easy to bowl, the hard ball or the soft ball? It varies because soft ball में जो खेलता है ना केरला में, लेंथ बहुत छोटा है। तो आगे क्या छोटा है, मतलब लेंथ, the wicket is the length of wicket is very yes. So I have seen your videos, it's now also you can see a lot of in Kerala इतना सारा बॉलर से कटर डालता है, ऑफ स्पिन लेग स्पिन बहुत होगा, मगर विकेट तो इतना छोटा है। अगर ये नॉर्मल वाला विकेट में इजी नहीं है। कटर बॉलर के लिए मेरे लिए अच्छा हार्ड टेनिस ही है, क्योंकि हार्ड टेनिस थोड़ा पेस भी मिलेगा। अगर प्रॉपर लेंथ में सॉफ्ट बॉल लेके डालने के लिए कोशिश करेगा तो इतना पेस नहीं मिलेगा हमको, तो हार्ड टेनिस ही है बेटर। और क्या डिफरेंस है, अगर मैं आशिक आपसे पूछूं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, महाराष्ट्र में और साउथ पार्ट में, और कुछ डिफरेंस है बॉल के अलावा, कुछ डिफरेंस है? द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट इज वेरी हाई एंड द पीपल, द स्पेक्टेटर्स केरला में बड़ा टूर्नामेंट में लास्ट वीक भी मैंने एक मैच देख रहा था, लाइव मैच देख रहा था, 1000-2000 लोग, और कमेंट्री और सब लोग इतना खुश बोल रहे कि अरे हमारा मैच 2000 लोग देख रहे। इधर महाराष्ट्र में
एक अच्छा टूर्नामेंट 20-30 हजार लोग देखता है easily. हाँ इजीली. तो सी द डिफरेंस. एंड कुछ भी परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में ये वाला टूर्नामेंट में लोग कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं ना, वो पूरा इंडिया देखता है. तो हर जगह से इनको चांस मिल रहा है, हर स्पॉन्सर भी देखता है. केरला में तो मैचेस देखने के लिए इतना लोग नहीं है, क्योंकि इतना स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है, और मैंने बोला ज्यादा से हल्का बॉल में ही होता है मैचेस. तो वही है प्रॉब्लम. अगर केरला को इम्प्रूव कर सकता है, लोग ज्यादा हार्ड टेनिस में भी खेल के, थोड़ा बड़ा ग्राउंड में भी खेल के थोड़ा आदत आ गया, तो स्टैंडर्ड विल बी वेरी हाई. नाउ दे आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं सब. अभी प्लेयर्स को थोड़ा आइडिया मिला है, हार्ड टेनिस खेलेगा तो ही आगे जा सकता है. तो उन लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, इट्स गुड फॉर केरला क्रिकेट. It's good. And Kerala cricket से मुझे ये पूछना है आपसे, why everywhere I see Ashik Ali Kerala, Ashik Ali Kerala? You want to tell everyone that you are from Kerala? No. Before having this fame and ये all India level tournament खेलने के पहले ही मैं social media That you want to tell the world that the only good bowler or a good tennis cricketer is from Kerala is Ashik Ali? No, it's not like that. But I feel why myself, on your Instagram, on your YouTube? Yeah, it's Kerala. Because I used to put a lot of videos in Instagram before I'm having this fame. Okay, my batting video, bowling video and all. So social media में सब लोग पहले चीज यही पूछते हैं, भाई आप कहाँ से हो, भाई आप कहाँ से हो. तो मैं बोलता केरला. फिर इन लोग बोलते हैं, अरे केरला में इतना क्रिकेट चलता है, केरला में टेनिस बॉल इतना है, प्लेयर खेलता है. ये सवाल आते. तो मैंने सोचा तो मेरा नाम आशिक के लिए केरला रखेंगे, तो ये सवाल नहीं पूछेगा ना. ये सब लोग यही पूछते हैं. मगर देन वन थिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ, there isn't very much of players coming out from Kerala playing all India level tournaments. There were few fast bowlers were there, Ambuti and Anas Payal, the lefty. But after that, I don't think anyone has played games as much as me as of now. Maybe in future they will play. But so I'm feeling very happy. But that's a great thing or a shame, because like in Kerala there's so much of talent that we are still yet to recover. Even I tell my friends, there are a lot of bowlers. I told you, like the cutter bowlers, a lot are there. I used to tell my friends that because in Kerala, I'm not even in the first best 10 bowlers. If you pick, I won't be there. You won't be there? I won't be there. Because currently or? Any time you pick, currently also you pick, easily you will get 10 best bowlers than me. Better bowlers than me. Because the condition of cricket in Kerala, there are bowlers who can bowl accordingly. The soft ball cricket or hard tennis, the length is different, the boundaries are short. So there are bowlers. So I used to tell them, you doing this, इतना talent है, तुम लोग ये इसमें करो, इतना length में practice करो, ये hard tennis में भी ज़्यादा practice करो. मैं सबको वही बोलता हूँ. तो करके आदत आ गया, तो बड़ा टूर्नामेंट खेल के भी थोड़ा आदत आ गया, तो उनको भी मेरे से ऊपर बहुत आगे जा सकता है. अभी भी आ रहे हैं बहुत, एक दो ऐसे आ रहे हैं बॉलर लोग. My next question, you said you are not in the top 10. If you rank in Kerala, you're not in the top 10. So what's the problem? What's the problem? Why people not coming from Kerala? Why we don't see second Ashik Ali from Kerala? There is a lot of people coming. Now you see Firaz, the left-hander bowler, he also does the variation. And you see Malinga Riaz, he bowls that Yorkers. Variation bowlers are there a lot, but they're not getting the chance. And I said in Kerala, the conditions in Kerala, it's different. The length is different, so they are not used to the length here in the normal cricket they play. So now they are practicing. Next season you will see, I think next ISPL you will see a lot of bowlers from Kerala. And I really feel the आने वाला 1-2 साल में बहुत सारे bowlers आएगा केरला से, cutter bowlers बहुत आएगा, क्योंकि इतना अच्छा talent है, इतना सारा bowlers है, बहुत है. पैसे की बात की जाए, जैसे कि you see in especially in this part of India, money is there, fame is there, everything is there. Whatever a cricketer need, everything is there in this part of India. If you are a top batsman in Kerala or a top bowler in Kerala, just playing in Kerala, not playing open tournaments, how much you can earn? I think in a year, maybe if you consider me as a great player in Kerala, I think maybe a top 3, let's say 3-4 lakh maximum. I think 3-4 lakh maximum. 3-4 lakh. So if anyone playing cricket in Kerala and just staying in Kerala, do you think they can pursue it as a career option? That is the difficulty they are facing in Kerala. That is the problem. That is the difference from Maharashtra and Kerala. Kerala people तो बहुत अच्छा खेलते हैं, 25-26 उम्र हो गया तो उनको भी पता चला, अरे यार
क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेल रहा है, मगर इससे नहीं होगा तो इन लोग कुछ काम के लिए जाता है, क्रिकेट छोड़ता है, नहीं तो ज्यादा सा जीसीसी जाता है, दुबई सऊदी, उधर जाके क्रिकेट खेलता है मगर काम के साथ। तो वो चीज हो रहा है केरला में, इतना साल वही हो रहा है, मगर अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी एक साल में लास्ट 1 सीजन पीपल का सोच थोड़ा चेंज हो रहा है, हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि अगर बाहर का टूर्नामेंट भी थोड़ा खेलेगा तो थोड़ा अच्छा ज्यादा पैसा मिलेगा तो कर सकता है। तो यही हो रहा था केरला में, अच्छा खेल रहे, 25-26 उम्र हो गया, शादी हो गया, नहीं तो काम मिल गया, क्रिकेट छोड़ दिया, तो पैसा बहुत कम मिल रहा है ना। वही मेरा भी वही प्रॉब्लम था, मेरे को आगे जाने के लिए पैसा ज्यादा कमाना था, पैसा ज्यादा कमाने के लिए ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट खेलना था, उसके लिए कुछ चीज होना चाहिए तुम्हारे हाथ में, तो वही मैं सीख के इस इधर आ गया, ये स्पिन बॉलर बन गया। 2 साल से फॉर्म टॉप अपने गेम में हो? मेरा बेस्ट में हूँ। कितना कमा लेते हो? मैं कमा सकता, मैं दूसरा इंटरव्यू में बोला है 20 से 25 लाख तक कमा सकता है आफ्टर आईएसपीएल, क्योंकि आईएसपीएल में अभी सोचा, आईएसपीएल में बेस एक 5-6 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर आप पूरा सीजन खेलेगा तो 20-25 लाख तक आराम से कमा सकता है। कमा सकते हो? तो आप कमा रहे हो? क्योंकि मैं तो वो जितना कमाते हैं बोल नहीं सकता है ना, मतलब मेरे से भी अच्छा 25 लाख से भी अच्छा ज्यादा कमाने वाला प्लेयर्स बहुत है, इससे कम भी कमाने वाला बहुत है, 10-20 तो आराम से होगा, इजीली होगा, क्योंकि सीजन क्रिकेट में भी बहुत पैसा कमाता है। ये कोलकाता में भी 3 महीने में 10-15 लाख कमाते हैं, बस 3 महीने में कोलकाता में खेल के बड़ा बड़ा प्लेयर लोग पूरा खेलेगा। तो सीजन क्रिकेट राजस्थान में भी होता है, मगर पैसा ज्यादा कोलकाता में ही है, तो पैसा 25 लाख के ऊपर कमा सकता है पूरा सीजन, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलेगा तो। आइकॉन को भी मिलता है 60-70-1 लाख तक मिलता है आइकॉन को। आइकन वाला टूर्नामेंट सोचो 5-6 खेलेगा तो उधर ही हो गया 5-6 लाख रुपया। फिर वो आइकन तो आईएसपीएल में भी 15-20 लाख से कम में तो नहीं जाएगा। हाँ, आईएसपीएल का भी पैसा हो गया, उधर ही हो गया ना 15 लाख। आपने कितना चार्ज किया मैक्सिमम? मेरे को 60,000 मिला था एक टूर्नामेंट का। 60,000? हाँ, वो तो मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा पेमेंट उसमें ही मिला है। जीते थे? वो केरला का टूर्नामेंट था, वो इंडोर, मतलब वो जो क्रिकेट। हाँ, फिर भी जीते थे? जीते थे। तो मतलब वर्थ हो गया जिसने आपको दिया पैसा? बहुत खुश हो गया उन लोग। और तो आपने बोला नहीं नेक्स्ट सीजन 1 लाख दो? नहीं, क्योंकि हमको पता है ना, मतलब अगर उन लोग देने के लिए रेडी है तो भी हमको उतना नहीं बोल सकता, हमको खुद वो रिग्रेट फील होता है, अरे यार मैं क्या कर रहा है इतना, मतलब क्रिकेट तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, अगर नेक्स्ट सीजन थोड़ा नीचे हो गया तो भी मेरे को क्रिकेट तो खेलना ही है ना, तो उतना ऊपर नहीं जा सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट था मेरे का। केरला की बात नहीं करें, पूरे साउथ की बात करें तो साउथ के क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स? क्या किया जा सकता है कि साउथ का क्रिकेट ऊपर जाए? हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलना चाहिए एक तो। अभी मेरे को लगता है ये 70-70 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को लगता है पहले इन लोग कंडक्ट करना है। अभी केरला में भी टूर्नामेंट हो रहा है, मगर इन लोग बात कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल नहीं होना चाहिए, बस ऐसा करना है कि एक टूर्नामेंट में 1 या 2 प्लेयर को बाहर से खिलाने देने के लिए, क्योंकि अगर ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट होगा तो एक 3-4 पैसा वाला टीम सब अच्छा टीम बनाएगा, बाकी लोकल टीम तो इजीली हार जाएगा, तो इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा थिंकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट आगे जाने के लिए ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट ही रखना है। 70 तो टेनिस क्रिकेट लाइव ब्रॉडकास्ट रखो, तो जितना टैलेंट है सब लोग दिखेगा, तो वो ईजी वे है। हर स्टेट में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में साल में 5-6-7 बड़े ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट रखो, इनका लाइव ब्रॉडकास्ट रखो, फिर आराम से सबको आइडिया मिलेगा। क्योंकि अभी ये सीवी के जैसे बन गया ना, रेज्यूम के जैसे बन गया, एक प्लेयर का चीज पता ना चला तो ये वीडियो देखना है ना, तो यूट्यूब में देख सकता है, सबको आइडिया मिलेगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। मतलब प्लेयर्स को लाइव दिखना ज्यादा जरूरी है, उनकी परफॉर्मेंस दिखेगी कि ये प्लेयर ये टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, तो शायद उनको और भी अलग अलग जगह से कॉल्स आएंगे, ऐसा हाँ। आप कहना चाह रहे हो? तो लाइव दिखना ज्यादा, लाइव देखना, मतलब लाइव इसका बड़ा बड़ा ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट रखना है, और ऐसा बड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट को भी बुलाना चाहता हूँ, तो अच्छा रहेगा। आपने कोई आपके आइडल है टेनिस क्रिकेट में जिसको आप देख के मतलब टेनिस क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, केरला में या फिर आउट ऑफ केरला? नहीं, हमारे गांव में एक बैट्समैन था, नाम है तौफीक, तौफीक। वो हमारा गांव केरला में भी है, और हमारा गांव है कासरगोड नाम है, तो वहाँ का इतना खतरनाक बैट्समैन था।
तो उसका बैटिंग देख, मैं जब स्कूल में था तो अगर मेरे को पता चला ये तौफीक इधर खेल रहा है तो मैं बस पकड़ कैसे जाता, उसका बैटिंग देख रहा था। तो मेरे को पहले बैट्समैन बनना था, तो बैटिंग इंडिया किया। में सबको ही बनना है। हाँ, तो बैटिंग किया, फिर मैंने को सोचा कुछ इम्पैक्ट करना तो बॉलिंग भी करना, तो मैं फास्ट बॉलिंग भी कर रहा था, तो फास्ट बॉलिंग शुरू किया। तो ऐसे ही तो उसको देख के थोड़ा मतलब सोचा करना है, ऐसा नाम लेना है, मतलब नाम में क्या होता है, वो क्या फील होता है, तो ऐसा हुआ मोटिवेशन। लग रहा है उतना नाम बन गया आपका? अभी वो ही खुद मेरे को बोल रहा है तुम मेरे से ज्यादा नाम कमा लिया, बहुत अच्छा है, वो भी खुश है। तो वो सुनकर मेरे को भी बहुत खुश लग रहा है। आपको भी अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या एज होगी उनकी? उनकी होगा 33 34। वो अभी भी खेल रहा है वो, मगर मैंने जैसे बोला ना पहले, वो दुबई में गया वो काम की वजह से। आप सेटिस्फाई हो? आपने क्रिकेट, प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट को परस्यू किया, सेटिस्फाई हो या फिर? बहुत क्योंकि 3 साल पहले मैंने सोचा ही नहीं मेरे को इतना बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेल सकता है। तो अभी भी अगर कल मैं रिटायर हुआ तो भी मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। क्या मतलब क्रिकेट से आपने क्या सीखा है? मतलब व्हाई यू आर सो सेटिस्फाइड? आपको घूमने मिलता है, इतना ज्यादा पैसा मिलता है घूमने का? जो चीज हमको बचपन से इतना पसंद था, इतना टाइम हमने स्पेंड किया, मेहनत किया, उसका टॉप लेवल में हमको कुछ इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट क्रिएट किया ना, वही मतलब वो जो चीज़ है, जो जितना मेमोरीज मिल गया वही काफ़ी है मेरे लिए। मतलब जो चीज़ हम टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा था भारत में, इंडिया में इतना लोग खेल रहे, इतना लाखों लोग खेल रहे, हर जगह पे एक एक कॉर्नर पे जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ उधर भी खेल रहे, जम्मू में भी खेल रहे, साउथ में भी खेल रहे। तो उसमें ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट में 8 7 6 मतलब बड़े बड़े टीम का टूर्नामेंट होता है, उसमें भी खेल सकता है। 2 साल खेला, इतना मतलब खेल चुका है, तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि वो इतना इजी नहीं होता है कंटिन्यूसली ऐसा बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेलना है ना, मतलब इतना सारे प्लेयर्स है उसमें से खेलना है, तो कुछ तो होना चाहिए ना। तो बहुत हैप्पी हूँ। हैप्पी? आपने बोला मेमोरीज, क्या है आपकी मतलब वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मेमोरीज इन द सेंस, कुछ भी मेरे मैच के वीडियोस, कभी भी मैं बोर्ड होता है, कभी भी मेरे को लगता है आप यार, देखते हो? खुद मेरा इंस्टाग्राम का वीडियो देखता है, फिर मेरे कैसे लगता है कम ऑन यू कैन, मतलब मैंने किया है तो कर सकता है, मगर कुछ तो अपडेट तो करना ही है। मगर कभी भी मैं ऐसा थोड़ा बोर्ड, थोड़ा लगता है मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ लगेगा, तो उसी टाइम में इंस्टाग्राम मेरा वीडियो देखता है, ऐसा मैंने क्या किया है, तो किसके साथ किया है, सब देखता है, तो मेरे को खुद थोड़ा अच्छा लगता है। मोटिवेशन के लिए खुद अच्छा फील होता है मोटिवेशन। कि वाइफ के बारे में कुछ बताओ आपके। Wife is the biggest or the biggest thing happened in my life, because especially in tennis ball cricket, before the marriage or before you start It's working, a love marriage or arranged marriage? No, arranged marriage only. Before start working, it's different, and the problem happens after the marriage, शादी के बाद, नहीं तो काम के बाद, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा क्रिकेट खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो परफॉर्मेंस भी थोड़ा डिफरेंट होगा। मगर मेरा वाइफ कभी भी मेरे को क्रिकेट से स्टॉप नहीं किया, और कभी भी उसने कुछ नहीं बोला क्रिकेट के बारे में, तो वो तो फीलिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर उसने सोचा, अगर उसने बोला अरे इतना क्रिकेट क्यों खेल रहा है, थोड़ा इधर भी आ जाओ, हमारे साथ घुमा, ऐसा कुछ उसको बोल सकते हैं। शी हैज द राइट, इफ शी टेल मी आई हैव नथिंग टू डू, आई विल जस्ट हैव टू लिसन टू हर। बट had she said me like that, I couldn't have performed like this, I couldn't have spent this much time in cricket. So that thing, the understanding she had, because she realized the passion I had, that enjoyment I had spending time in cricket. So that really helped. That's the biggest thing I had. I'm so happy and so thankful to have her. So big thanks to your wife. Yeah, obviously. उसके अलावा your family members? Family members, I have a brother. So very soon I started playing cricket only because of my elder brother. His name is Anas. He is like 3-4 years elder to me. So in my childhood, he was my role model. Like I want to do anything he does. So whatever he wears, I want to do. Whatever he does, I want to do that. Just want to copy him. So he used to play cricket. So I also wanted to play cricket. So he is a real motivation, and he helped me a lot, and he always supported me and my younger brothers. And parents, you don't have to thank, because obviously for everybody, parents, they do support. And my elder brother and my younger brothers, I feel real
lucky I had. So there, and my family, most of the people, you know, even if they're playing real cricket, they after some period, even if they start working, they have this problem of taking financial thing about the family and responsibility, financial responsibility. But my dad, my father, his name is Shamsu Salam, he never put me in a position where I need to worry about the financial problem, about the family, on anything. Even now also, even if I start earning also, he never put me in that position, because that I feel is a real blessing. So for me, a lot of luck factors are revolving around. So in the middle, me doing my thing, and lot of luck factors evolving around, and the support from the family. Because a lot of players I have seen playing really well, but because of this family problem after the marriage, after the work, नहीं तो कुछ फैमिली का खर्चे का मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो वो चेंज करता है, मतलब मेंटली एंड फिजिकली, एंड दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म. So those things, if I'm thinking, it's all good for me so far. So happy that I had this family and wife and all things. So you are financially sorted out, so no problem with these. No financial. But you are capable of helping in your family. Yeah, you can now, help, yeah, but they don't want your help. Exactly. So what do you do with the money? What do you do with this 20-25 lakh rupees? No, we as a family after marriage will have expenses. You know it better. like still, what do you do? Like you. I love going around. So one thing the people in Kerala ask me, like, अरे बात इतना ट्रैवल करना है, केरला से ज़्यादा फ्लाइट हमको मिलता है, टच फ्लाइट ही मिलता है, कनेक्शन फ्लाइट. तो लेवर होता है 6-5-7 घंटा, रात को भी ट्रैवल करना पड़ेगा, और एक जगह ट्रैवल करना पड़ेगा. हम अभी भी कभी भी गया नहीं, अकेले जाना पड़ेगा, रात को पहुंचेगा, लोग को बस पहचानते हैं बस मैसेज में, कॉल में. तो ऐसा बहुत गया है, एक शहर में गया है, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब क्या, मतलब इतना बोलता है, इतना रूरल एरिया हम बोलते हैं. तो लोग मेरे वीडियो फोटो देख के लोग पूछते हैं मतलब कैसे मतलब होता है, और खाने के भी एडजस्ट करना, केरला लोग को वो भी थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है. तो मेरे को वो बहुत पसंद था, क्योंकि एक नया जगह जाना, देखना, उधर के लोग के साथ बात करना, खाने का भी मेरे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो ये सब मेरे लिए अच्छा हुआ क्रिकेट की वजह से, क्योंकि क्रिकेट के लिए ऐसा जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, फूड का एडजस्ट करना पड़ता है, स्लीपिंग का एडजस्ट करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ मेरे को पसंद था, क्योंकि वो जिस मैं कर रहा है पसंद वाला चीज़ के लिए, क्रिकेट के लिए, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं फील हुआ, वो भी थोड़ा अच्छा हुआ मेरे लिए. कुछ बताओ. मैंने I called few people and asked them, like, is there any controversial around Ashiq Ali? And everyone said there is no controversy around Ashiq Ali. Is very calm, very good character, on field, off field. So you tell me, what's the controversial around? Any controversy around? Lot of controversy happened about my action. So I was about to come there, but okay, you started. So controversy. If you ask me controversy, are you a throw bowler? Let me tell you. If you ask me about controversy, the only thing comes with my action only. Action, yes. So in my district. When it was started, in the IPL it started? No, before only, long. Whenever I started playing, only people giving complaints. So in Kerala, I was playing this leather ball cricket in under 16. I played for the district. So zonal matches खेल रहा था. अंपायर ने बोला इसका एक्शन थोड़ा डाउटफुल है. इसने बोला नहीं, बोला इलीगल डाउटफुल है. तो मैंने सोचा, फिर ज़्यादा चांसेस नहीं मिला. फिर टेनिस बॉल खेलना शुरू हो गया. तो केरला में तो इतना स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो ऐसे खेल रहा था. जब मैं बाहर आने के लिए शुरू हो गया ना, तो इसके पहले मेरे को कंफर्म करना था, मेरे को एकदम सही होना चाहिए. तो मैंने हर तरीके का, मेरा हर वेरिएशन का बॉलिंग का वीडियो पकड़ के, केरला का एक BCCI ए लेवल अंपायर था, तो उसको मैंने भेजा, भाई थोड़ा देखो, क्योंकि तो उसने बोला लीगली है मगर थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि मेरा एक्शन इतना स्मूथ नहीं है. विश्वजीत बाहुले था वो अंपायर का नाम. तो उसने बोला स्मूथ नहीं है मगर डाउटफुल है, मगर लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है ना. तो जब मैं खेलने के लिए शुरू हुआ, सब लोग अपोजिट टीम अपील किया, तो मेरे को पता है लीगल है, तो मेरे को कभी भी टेंशन नहीं था, क्योंकि लीगली है, डाउटफुल है. मगर कभी कभी मेरे को टेंशन आ गया, क्योंकि अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड वाला अंपायर है, इनको इतना पता नहीं होगा, और एक बहुत सीनियर बैट्समैन अपील किया, तो शायद उसने नो बॉल दे सकता है. तो उसी टाइम थोड़ा
मतलब ऐसा डाउटफुल होता है, अंपायर ऐसा बोलेगा तो क्या करूं, तो ऐसा डाउटफुल हुआ था। मगर मेरे को पता है लीगली है, एक्शन इतना स्मूथ नहीं है, तो इसलिए डाउटफुल होते ही रहता है। बट आपने कहा कि कोई सीनियर बैट्समैन अगर करे, क्या क्या होता है अगर सीनियर बैट्समैन करे और कोई इनएक्सपीरियंस अंपायर हो एंड से कि नहीं एक्शन लीगल नहीं है, लीगल एक्शन है, तो आपको मैच से बैन किया जाता है, टूर्नामेंट से बैन किया जाता है, इसका आगे का प्रोसेस क्या है? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अगर हुआ तो मैं लीगली क्या कर सकता है देखना पड़ेगा। मतलब ये फेयर एक्शन है, मतलब किधर भी मेरे को लगता है दिल्ली या बैंगलोर जाके प्रूव करना पड़ेगा। मैं तो रेडी हूँ ऐसा बट करने के ऐसा लिए। कुछ एसोसिएशन है टेनिस में? टेनिस में अभी तक नहीं होगा, क्योंकि नहीं, मेरे को लगता है नहीं है। मेरे को ऐसा हुआ तो मेरे को अभी नो आइडिया लाइक व्हाट टू डू। मतलब फिर भी मैं दूसरा टूर्नामेंट खेलेंगे, अच्छा अंपायर जो होता है ना, चांसेस तो मिलेगा ही मिलेगा। बट जब से आपसे आपका एक्शन का प्रॉब्लम आया है, आप लेग स्पिन, लेग कटर काफी डाल रहे हो, ऑफ कटर बंद कर दी एक और यू आर गेटिंग हैमर्ड। है ना, वो चीज हुआ था। एक मुंबई में एक अंपायर था, तो मैं एक टूर्नामेंट खेल रहा था, ये अंपायर मैच के बाद आके मेरे को, जो अब हम रूम में ऐसे बैठ रहा था, तो उसने आके मेरे को ऐसे साथ बात किया, तो मेरे को बोला, थोड़ा वैसे डरा दिया मेरे को, योर एक्शन इज वेरी डाउटफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैंने सर, वो तो इतना एक्सपीरियंस अंपायर था, मैंने सर ओके सर, मैं तो ख्याल रखेंगे। फिर मैंने मैच का वीडियो देखा, मैंने सोचा अरे ये तो ठीक ही है, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर दूसरा भी एक टूर्नामेंट में भी उसने देखा, मैं देख रहा हूँ तुम एक्शन तो डाउटफुल ही है, थोड़ा ख्याल रखो। मैंने सोचा ओके सर। फिर मेरे को लगता है यार ये तो बस ऐसे ही मुझे कोई कोई मतलब कोई चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही डरा दे रहा है। फिर क्या हो गया, ये ISPL हो गया, सब हो गया। इसके बाद भी वो आ गया, मैं एक मैच, वो साइड अंपायर था, वो दूसरा अंपायर मेन अंपायर था। तो मैंने बॉलिंग डाल रहा था, मैं एक एक वेरिएशन डालता ना, तो एक बॉल के बाद उसने मेरे को बोला वो बॉल मत डालो। मैंने बोला क्या हो गया वो बॉल में, वो बॉल थोड़ा डाउटफुल है। मेरे को इतना गुस्सा गया, मैंने बोला सर अगर नो बॉल है तो आप नो बॉल बुलाओ, थर्ड अंपायर है, कैमरा है, इतना सारा सेटिंग्स है, मोबाइल में भी वीडियो पकड़ता है, नो बॉल है तो आप नो बॉल बताओ। ऐसा नहीं बोलने का ही वो डाउटफुल है, वो बॉल मत डालो। फिर ये अंपायर भी आ गया, मैंने बोला मेरे को जो चाहिए मैं वो डालेगा, आप मत बोलो मेरे को ये डालो वो डालो करके, क्योंकि मेरा मर्जी है, मैं कुछ भी चाहिए डालेगा। अगर नो बॉल है तो आप नो बॉल बुलाओ, ऐसे डाउटफुल है बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर 3-4 टूर्नामेंट खेला, फिर लास्ट मैंने उसको मीट किया, उसने मेरे को आके बोला अरे भाई तुम GCC में ज्यादा खेलता है ना, अगर कभी भी मेरे को एक अंपायरिंग करने के लिए चांस है तो मेरे को ऐसा हो गया। तो मेरे को पता चला बस ऐसे ही डरा दे रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर नो बॉल तो नो बॉल बुलाओ, मैं वो बॉल नहीं डालेगा, नहीं तो मैं दूसरा कुछ करेगा। बस बोल रहे डाउटफुल है, मतलब वो बोल के क्या, मतलब क्या फायदा है, क्या करना है सर। डाउट एक्शन तो इतना स्मूथ नहीं है, वो तो मैं एग्री करता हूँ, मगर ये तो बस ऐसे ही डरा दे रहा है। बैट्समैन लोग करेगा, ऑपोजिट बैट्समैन करता है, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बॉलर को प्रेशर डालने के लिए क्रिकेट में ऐसा होता है। ट्रिक है बैट्समैन की प्रेशर डालने के लिए, वो तो मेरे को पता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ISPL में एक बार ऐसा हुआ था, वही मैं पूछने वाला था। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है, पावर प्ले में ओवर डाल रहा था मैं जगत सरकार का ऑपोजिट। तो मेरे पावर प्ले में तो जब जगत भाई ने बैटिंग करने के लिए आया ना, मेरे माइंड में 1-2 डिलीवरी होता है, इसको ये डालना नहीं तो ये डालना है, तो कभी भी होते ही रहता है कोई भी बैट्समैन को। तो मैंने ऐसे तो मैं रन अप के लिए जा रहा था, तो अंपायर आके मेरे को बोला ये बॉल मत डालो। मतलब अगर मैच के बीच में बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैच के टाइम उसने ऐसा बोला तो मेरे को थोड़ा उसी टाइम थोड़ा प्रेशर आ गया, क्योंकि ये बाहर का टूर्नामेंट के जैसे नहीं है, ISPL है, इधर क्या सिस्टम है कैसे चलेगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो उसी टाइम मेरे को थोड़ा डर लगा था, तो मैंने जो मतलब मेरा दिमाग मतलब पूरा ब्लाइंड हो गया, मेरे को पता नहीं क्या बॉल डाला, कुछ न कुछ तो मैं डाला, गंदा बॉल आ गया। तो जगत भाई ने शायद मेरे को लगता है रिवर्स मारा, फुल टॉस ऐसा कुछ गिरा, उसने अच्छा मारा मेरे को। तो उसी टाइम वो एक मोमेंट में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैच बीच में उसने बोला। बॉलिंग फिगर्स अच्छे थे मैच में कि नहीं, वो मैच में बॉलिंग फिगर्स गंदे थे, और इसके बाद एक 3-4 मैच में अच्छा किया था, मगर पूरा ISPL में भी मतलब एवरेज ही बोल सकता है। विकेट तो मिला है, 14 विकेट तो मिला है। वो इम्पैक्ट किया वो इंसिडेंट जब अंपायर ने आपको बोला ISPL में आगे, वो चीज इम्पैक्ट किया आपके माइंड में? नहीं, बस वो मैच में थोड़ा मेरे को ऐसा लगा, मतलब थोड़ा डर लगा था, मतलब डर नहीं, मतलब क्या बोलूं, माइंड इतना ब्लाइंड हो गया, मतलब पता नहीं क्या करना है। नॉर्मली जब मैं कोई भी बैट्समैन हो, इतना बड़ा बैट्समैन है, तो जब मैं रनअप के लिए जाता है उसी टाइम
मेरे दिमाग में चलता है ये बॉल डालना तो ये शॉट डालेगा मारेगा, ये बॉल डालना तो ये शॉट भी डाल सकता है। एक दो बॉल तो माइंड में रेडी होता है, अगर ये बॉल मारेगा तो भी दूसरा बॉल के लिए भी मेरे रेडी होता है। मगर उसी दिन थोड़ा ब्लाइंड हुआ था, पता नहीं था क्या करना है, ऐसे ही पूरा गंदा गया था। बट आप क्या कहना चाहोगे मतलब सारे अंपायर्स को आपके एक्शन पे? एक मैसेज दे दो, इफ योर एक्शन इज क्लीन डोंट से आई एम डाउटफुल, जस्ट से नो बॉल। इट्स गुड, फेयर इनफ। फेयर इनफ? हाँ, वेरी मच। फिर आप कहाँ से क्लियर कैसे करोगे एक्शन? इसके बाद वो जो बॉल उसने बोलता है इलीगल है, वो बॉल में नहीं डालेगा, उसके लिए मैं दूसरा बॉल डालेगा। मतलब अगर मेरा लेग स्पिन ऑफ स्पिन, ये लेग स्पिन और ऑफ स्पिन डालने के लिए 2-3 तरीका है। जो बॉल उसने बोल रहा है इलीगल है और उसने मतलब प्रूव कर रहा है सही से इलीगल, मेरे को भी लगता है तो मैं दूसरा बॉल, अगर मेरे को हर दूसरा ऑप्शन है ना, मतलब 5 बॉल है मेरे पास, वो जो एक बॉल छोड़ के बाकी सब डालेंगे मैं। तो मतलब आप वर्क करोगे? मतलब वो तो मैं करते ही रहता हूँ ना। ये अभी भी नए नए बॉल तो अभी मैं बैक ऑफ द हैंड सीख रहा हूँ। तो बात बता किया था मैंने, एक मतलब मैच में यूज किया था जब बैट्समैन लोग रेडी हो जाएंगे। बैट्समैन तो अभी कुछ भी हाइड नहीं कर सकता, इतना सारे वीडियो है, बैट्समैन तो सब लोग देखता है ना, तो हम कुछ भी हाइड करेगा तो बैट्समैन अच्छा बैट्समैन देख के खेल के आदत आ गया, उन लोग बहुत जल्दी पिक करता है उन लोग। तो कौन सा डिलीवरी सीख रहे हो आप अभी? बैक ऑफ द हैंड मैंने किया है, 3-4 टूर्नामेंट में भी डाला है और थोड़ा भी अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बेटर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? ओ प्रैक्टिस करते रहता है। बैक ऑफ द हैंड एंड तेज वाला, सीधा वाला मैं डालता है यॉर्कर लेंथ में, वो तेज नहीं है और थोड़ा तेज में भी ऐड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर। आपने कहा कि हर एक बैट्समैन के लिए, आपके कोई भी बैट्समैन के लिए 2-3 डिलीवरी आपके माइंड में पहले से होती, कोई भी बैट्समैन हो? क्योंकि जितना बड़ा मतलब कोई भी बैट्समैन, कोई भी बड़ा बैट्समैन, जितना बड़ा बैट्समैन, क्योंकि उनका वीडियोस में 2-3 साल से देख रहा हूँ मैचेस, तो मेरे को थोड़ा आइडिया होगा ना मेरा, वो जो क्या क्या शॉट खेलता है, कैसे कैसे खेल सकता है। तो इसलिए मेरे पास, अगर मैं ऐसे सोच रहा था अगर इसने मेरा सामने आ गया तो मैं इसको ये बॉल डालेंगे, तो ये शॉट भी खेल रहा तो मैं ये बॉल डालेंगे, तो इधर फील्ड रखेंगे, फिर वो भी खेलेगा तो फिर मैं देखना, फिर तीसरा ये बॉल डालेंगे। तो ऐसा दिमाग में होगा ना सबका, मेरे को लगता है सब बॉलर का दिमाग में होता है ऐसा। स्टिल कौन सबसे डिफिकल्ट है बैट्समैन? मतलब कि आप कितना भी सोचो एक स्टेप आगे ही रहते हैं आपसे। वो 2-3 बैट्समैन ऐसे। माय फेवरेट बैट्समैन में बोलेगा तो पीक ऑफ द टाइम, नॉट एज अ फैन एट bowling an difficult opposition. in the power play. I still feel Krishna sir and Jagat, because they play the Krishna Satpute and Jagat Krishna Sarkar. Satpute sir and Jagat Sarkar. Oh. And Fardeen also sometimes, because because sometimes he sometimes he gets out in, like मेरे lose ball में भी वो out होता Gets out for nothing ball. No, sometimes he plays some so good a shot that we feel इतना अच्छा बॉल था फिर भी वो मारता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं अरे इतना गंदा बॉल गिरा, फिर भी वो कुछ ना कुछ शॉट खेल के आउट भी हो सकता है। ऐसा हुआ था इसलिए। आपने एक अश्विन से पूछा था, रविचंद्र अश्विन से पूछा। सेम वो सेवा आ गया। He gets out on the nothing ball. Not I intentionally bowled nothing ball against Fardeen and Jagat and all. We think lot, सोच के डालने के टाइम थोड़ा गंदा गिरेगा तो भी कुछ ना कुछ गलत शॉट मार के आउट होता है। मगर पावर प्ले में भी ये जगत, कृष्णा सर एंड फरदीन। पावर प्ले के बाद बोलेगा तो मैं बोलेगा संजू एक खतरनाक है। संजू कनौजिया बहुत अच्छा खेलता है, हर जगह खेलता है, बाहर डालेगा तो बाहर खेलता है, इधर डालेगा तो इधर भी खेलता है, मतलब थ्रू द लाइन खेलता है, रिवर्स भी खेलता है, एकदम बढ़िया प्लेयर है। और इतना डेंजरस मेरे को किसी और प्लेयर नहीं लगता है। Who's your bunny? I don't think that you see this batsman, oh yeah, इसको तो मैं ऐसे ही है, ये क्या है, he's a big batsman but इसको तो मैं आउट ले लूंगा और I will trouble him। ऐसे नहीं है, मगर अगर कोई भी बैट्समैन आएगा तो हमारे टीम वाला आके मेरे को बोलेगा ना ये खेलेगा, ये शॉट खेलेगा, तो अगर कोई बैट्समैन आके रिवर्स स्वीप नहीं खेलेगा तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो रिवर्स स्वीप भी खेलता है तो उसके लिए मेरे को ज्यादा सोचना पड़ता है। अगर रिवर्स स्वीप नहीं खेलता है ना तो मेरे लिए थोड़ा इजी लगता है कोई भी बैट्समैन है तो। Nowadays everyone plays reverse sweep. Now every good batsman plays reverse sweep. But there is a difference. The proper reverse sweep and who plays the best?
different style. Sanju plays reverse sweep, but he is more like a scoop, like ice cream scoop, like to the third man kind of area. Like Sachin Tendulkar used to play, like just That's a proper guide the ball. Guide the ball. Kind of, but he guides with power. It's not like just guiding the ball. He gives a lot of power with that shot also. And It Jagat goes Sarkar over the line. easily goes, but because his shot goes to the shorter boundary, the back of the batsman, no, so it goes clearly over the boundary. Jagat Sarkar plays really well. Always in doubtful. Always I feel Jagat is gonna play a reverse sweep now. He is gonna play a reverse sweep. If some other batsman plays reverse sweep, I won't be bothered much. Maybe ऐसे अरे तो मारने दो, तो मिस इट तो होने वाला ही है. मगर जब जगत फरदीन सब लोग खेलता है ना, बैटिंग करता है ना, मेरे को लगता है तो ये तो बैट को लगने वाला ही है. तो ऐसा वो फील मतलब दिमाग में आता है हमारा, जैसे हम बॉलिंग करने के लिए जाता है ना, उसी टाइम आता है. अगर जगत रिवर्स के लिए जाएगा तो लगने वाला है. फरदीन अगर रिवर्स खेलेगा तो बैट को लगेगा ही लगेगा. ऐसा फील आता ही रहता है. So मैं आपसे पूछूं, you said you also opened with Krishna sir, and initially you came as a batsman. So ऐसा कौन सा बॉलर को आपने फेस किया और आपको लगा यार ये क्या क्वालिटी, आई कांट प्ले दिस बॉलर? फरमान करनाल, वो केरला में ये आया था. Your reaction says it all. Because अगर फरमान इतना थोड़ा क्या बोल उसको डेडिकेशन नहीं तो डिसिप्लिन होता तो वो तो नंबर 1 बॉलर होता इंडिया का. मगर वो तो इतना मैं खुद उसको बोला है, इसका डिसिप्लिन इतना ठीक नहीं. वो तो लाइक इजी गोइंग गाय है. ऐसे लाइक खेला तो खेलेंगे, डालना तो डालेंगे, मतलब हर टूर्नामेंट खेलना, हर इतना करना, मतलब वो ऐसा डिसिप्लिन नहीं है इसका. इजी गोइंग गाय है. अगर वो डिसिप्लिन होता तो बहुत डेंजरस है. केरला में वो जो टूर्नामेंट था, इतना बैट्समैन फेवर टूर्नामेंट था, उधर आके उसने अकेले मतलब इतना अच्छा बॉलिंग किया, मतलब बहुत इम्प्रेसिव. केरला में छोड़ो, केरला तो इतना स्टैंडर्ड नहीं है क्रिकेट क्वालिटी कंपेयर टू द नॉर्थ. कभी भी किधर भी आप जब एक जगह पर इतना डेडिकेटेड हो तो अच्छा बॉलिंग करता है. कभी कभी वो इतना मेहनत नहीं करेगा, बस ऐसे डाल के जाएगा तो थोड़ा मार मिलता है. अगर वो पूरा डिसिप्लिन अच्छा डेडिकेटेड हो तो बहुत खतरनाक है. मतलब he was the one bowler जिसने आपको realize किया that you are not Sachin Tendulkar, you are 11th number player. Actually, it's good. In your mind, but you were like Sachin or Virat. You're thinking like I am the Sachin Tendulkar of tennis cricket because you play very good lofted shot, cover drives. So while seeing your video, it looks like you like to play the covers. 2018-19 में जब मैं केरला में बैटिंग कर रहा था ना, मेरे को लगता था अरे यार कोई भी बॉलर आने दो, मेरा आराम से मारेगा. केरला में जितने सारे बॉलर केरला में थे, कोई भी बॉलर आने दो, मैं आराम से मारेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. मैं इतना प्रैक्टिसिंग भी कर रहा है बैटिंग, क्योंकि बैट्समैन को ईजी था थ्रू द लाइन मारना है, हाथ से थोड़ा पिक करना है, बस ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना है. थ्रू द लाइन मारेगा तो छक्का ही जा रहा है. उसी टाइम मेरे को लगता था अरे यार मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, ऐसा लगता था. मगर जब बाहर आ गया तो रियलाइजेशन मिला. फरमान का 2-3 बॉल खेला मैंने, बॉल देख भी नहीं रहा था, इतना तेज जा रहा था. तो वो अच्छा हुआ ना. एक्चुअली आई शुड बी वेरी थैंकफुल टू हिम. अगर that's why we have a magician spin bowling. Otherwise I would be like holding my bat and waiting for the chance, which is never gonna happen. So it's good that happened. Ashik, if I give you a situation, let's say कि a batsman hitting you 6 sixes in an over. So कौन वो 3 बैट्समैन होने चाहिए कि आप उनसे मार खाओ, then you are fine. चलो उन्होंने 6 sixes मारा है तो I'm okay. एक जगत and I संजू को संजू मारेगा तो you're fine. Fine in the sense मारेगा तो मारा, कौन मैं संजू मारा है ना, तो वो तो मारते हैं, हम तो क्या करूं. जगत, I'm a great fan of Jagat because I heard in an commentary saying he's a very well organized batsman. And I have seen him performing, and I used to watch his videos देख रहा था, इंडिया में भी देखा और GCC कंट्री में भी देखा. तो इतना ऐसा बहुत ज़्यादा बैट्समैन नहीं है हर जगह, मतलब इंडिया में भी और GCC में भी हर कंडीशन में इतना परफॉर्मेंस कर रहा है. था बंडी भाई था पहले, अभी मेरे को लगता है जगत का जैसा ऐसा पूरा जगह, और कृष्णा सर भी था, मगर अभी जगत का जैसा मेरे को नहीं लगता है पूरा जगह में जाके ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा कोई नहीं होगा. तो वो तो हर शॉट खेलता है, उसका कवर्स के ऊपर लॉफ्टेड भी बहुत अच्छा है. मेरे को भी जब मैं बॉलिंग करता है ना, उसी टाइम भी मेरे को रिलीज करता है बॉलिंग, जब लैंड होता है मेरे को पता है ये शॉट खेलने वाला है. मेरे को ऐसा लगता है मैं ये बॉल डालेगा, मगर उसका दिमाग में भी ये शॉट रेडी रहेगा
तो ऐसा फीलिंग मिलता है मेरे तो को। आपको रीड अच्छा करते हैं? वो तो रीड अच्छा करता है, मतलब वो रीड अच्छा करता है और शॉट भी अच्छा खेलता है। वही है, मतलब अगर कोई बैट्समैन, जब मैं लेग स्पिन डाल रहा है, बैट्समैन अगर पिक किया मैं लेग स्पिन डाल रहा है, फिर भी खेलने के लिए इतना इजी नहीं है। अगर बैट्समैन प्लान किया वो लेग स्पिन डालेगा तो मैं कवर्स में खेलेंगे, मैं लेग स्पिन डाला, उसने पिक किया, ये लेग स्पिन नहीं डाल रहा है, मगर खेलने के टाइम है ना वो एक्सिक्यूशन इतना अच्छा नहीं होना चाहिए होगा, तो मिस इट होगा, कवर्स में भी कैच हो सकता है। जगत का अगर वो प्लान हो तो उसका एक्सिक्यूशन भी अच्छा है। जगत तो मैंने एग्जाम्पल बोला है, बहुत सारे बैट्समैन है ऐसा, मतलब बड़ा बड़ा टॉप लेवल बैट्समैन। तो एक आपने बोला संजू, सेकंड जगत, कोई थर्ड बैट्समैन जिससे आप 6 खाने के बाद भी ओके इसने मारा तो आई एम फाइन, ऐसा थर्ड बैट्समैन? ऐसे बंटी भाई मैं ग्रेट फैन ऑफ बंटी भाई, मगर ज्यादा से बंटी भाई हमारे साथ में ही खेलता है ना, तो इसलिए चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अगर बंटी भाई में खेलेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बंटी भाई को वो जो बैटक भी खेलता है, कवर्स में भी खेलता है, तो मतलब कहाँ डालो बोल। अगर वो अच्छा फॉर्म है तो लेग स्पिन डालेगा तो कवर्स में भी मारेगा, ऑफ स्पिन डालेगा तो बैटक खेलेंगे, और अच्छा कनेक्शन में तो हर बॉल खेलेंगे। तो अगर वो मारेगा, अच्छा बैट्समैन तो मारेगा ही मारेगा। ऐसे बॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट मेरे को लगता है मोर ऑफ अ बैट्समैन फेवर्ड क्रिकेट। तो हमको बैट्समैन को रुक नहीं सकता है, हमको क्या कर सकता है, अच्छा बॉल डाल सकता है। तो मैंने क्या कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा बॉल डालते रहेगा। तो बैट्समैन इतना अच्छा है, इतना मतलब टैलेंटेड है, अगर अच्छा बॉल डालेगा तो भी छक्का मारेगा, दूसरा बॉल अच्छा डालेगा तो भी छक्का मारेगा। तो दैट रियलाइजेशन हैज टू बी देयर इन माय माइंड, so I don't have to be worried about that also. So if I'm getting worried about batsman hitting me for sixes, then the third ball and fourth ball I'm definitely gonna bowl a loser and they'll continue hitting. So even if they hit very good deliveries for sixes, I need to realize that okay, they're so good, they will hit, but I need to stick on my best deliveries only. So somehow I'll get them play missed shots and get their wicket or dot balls. So I expect, मैं सोच रहा हूँ, मेरे को भी पता है तो आने वाला ही है, तो मार तो मिलने वाला ही है ऐसा बॉलर, तो डाउन नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं लगना है, हम खुद अच्छा ही सोचना पड़ेगा। बंटी पटेल की बात करो ना। हाँ, बंटी पटेल की कुछ फैन फॉलोइंग के बारे में बताओ। बंटी भाई का इतना फैन फॉलोइंग है गुजरात में, स्पेशली इन गुजरात, यस, स्पेशली इन गुजरात, लॉट ऑफ मेमोरीज आर देयर बंटी भाई का। बंटी भाई के साथ कार में, बंटी भाई के कार में जा रहे थे, शायद मेरे को लगता है नवसारी में जा रहे थे, चिकली से मेरे को लगता है, तो रूरल एरिया, मतलब एक गांव जैसे एरिया में ऐसे जा रहे थे। मैंने बंटी भाई को बोला, बंटी भाई थोड़ा 1 मिनट रुको दवाई लेने के लिए, इतना ज्यादा लोग भी नहीं है, मतलब एक रूरल एरिया है। तो बंटी भाई ने गाड़ी रुक कर दिया, मैं मेडिकल में गया, तो मेडिकल वाला मेरे जैसी देख के थोड़ा ऐसे बात कर रहे थे। तो 1-2 मिनट के बाद बंटी भाई आ गया कुछ लेने के लिए, पता नहीं कहाँ से आ गया, 10-15 लोग इधर से उधर से आ गए, बंटी भाई करके फिर शुरू हो गया पूरा सेल्फी खींचने के लिए। अरे मेरे को तो अरे कहाँ से आ गया। ग्राउंड से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर रखता है बंटी भाई की गाड़ी, और बंटी भाई पूरा फेस कवर करके जाता है, अंदर नहीं जा पा रहा है। 3-4 बाउंसर्स आके, वो अभी भी आते नवसारी ग्राउंड में, बाउंसर लोग आके हमको मतलब आने के लिए रास्ता दिया है बंटी भाई के साथ अंदर जाने के लिए। तो बंटी भाई के साथ ऐसा मेमोरी है। एक बार मैं मुंबई से सूरत जा रहा था ट्रेन में, तो ऐसे ही वो ट्रेन में काम करने वाला है ना, 2 भाई लोग था, तो उन लोग ऐसे बात कर रहे थे मेरे को, जैसी और बैट देख के, हाँ अच्छा क्रिकेट खेलते, क्या क्रिकेट खेलते? टेनिस बॉल क्रिकेट। अरे टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के क्या मिलता है भाई, ऐसे तो भाई से मजाक में बात करता है। हमने बोला भाई कुछ नहीं मिलता है, बस ऐसे ही कुछ के लिए खेलता है, ऐसा अच्छा है क्या? कहाँ जा रहे हो? सूरत। अच्छा, कौन कौन खेलता है आपका? मैंने बोला आपको, मेरे को मालूम नहीं, आपको पता है नहीं, बंटी पटेल करके एक भाई है गुजरात। अरे इतना मतलब पलट हुआ, चेंज हुआ, बंटी पटेल के साथ आप खेल रहे हैं? अरे भाई सॉरी, हमको समझ नहीं रहे, आप बंटी पटेल के मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे एंड प्लेइंग विथ बंटी भाई इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर दिस गुजरात पीपल। अरे यार no, in Gujarat the craze is amazing. People wear Bunty Patel jersey only, lot of them. No Virat Kohli, no Sachin, nothing like that. Most of them are Bunty Patel jerseys. Fan following is so crazy because they don't. Bunty Bhai didn't get that fan just easily. He didn't get. I think 2015, 16, 17 and all, he was at his peak and he was a finisher. So he has finished lot of matches like ABD and MSD do for their team. He has done that throughout his career in peak time, and in GCC country also, lot of tournaments he won single-handedly. So he earned that.
He deserves that. So good. and very down to earth. Very down to earth. So because when first we were playing with Bunty Bhai and all, us so tense talking with Bunty Bhai. अरे Bunty Bhai तो इतना बड़ा player है, हम कैसे बात करो? अरे मतलब अगर फील्डिंग का कुछ चेंज करना है तो बंटी भाई को कैसे बोलूं? बंटी भाई थोड़ा उधर जाए इधर कैसे बोलूं? अगर बंटी भाई इतना कंफर्टेबल करता है हमको, मतलब इतना अच्छा इंसान, इतना डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। बंटी भाई, अंकुर भाई, सब इतना, थॉमस भाई, सब लोग जो रायगढ़ टीम का ना, सब लोग इतना अच्छा कंफर्टेबल हमको देता है, क्योंकि उन लोग इतना साल खेल रहे हैं, सब लोग इतना सीनियर प्लेयर है और टॉप लेवल क्रिकेट खेलता है। मैं तो अभी आ गया, मेरे साथ इतना अच्छा से बात कर रहा है, इतना कंफर्टेबल दे रहा है, बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छा है। रायगढ़ टीम में खेलने के लिए चांस मिला, रायगढ़ टीम में आ गया, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। चलो, सबसे खतरनाक फैन फॉलोइंग किसकी है क्रिकेट में? खतरनाक बोलेगा तो अगर एक जगह में मेरे को लगता है, गुजरात में बंटी, कोलकाता में जगत भाई, और मुझे श्रेयस कदम ने लास्ट इंटरव्यू में बोला है कि कोलकाता में जगत से ज्यादा सागर अली की फैन फॉलोइंग है। सागर अली की भी है, मगर मैं उनको टीम में, कोलकाता सीजन में जगत भाई की टीम में खेलने के लिए गया था, सागर भी था मेरे टीम में, तो जगत के पहले सागर ही खेल रहा था उधर। बाहर का टूर्नामेंट देखो, जगत भाई पहले बैटिंग करता, मगर उधर तो सागर ही बहुत अच्छा खेलता था, जगत से भी अलावा, मतलब जगत से भी ज्यादा बैटिंग भी वही ऊपर करता है। ऐसा बहुत प्लेयर्स है कोलकाता में, मतलब बहुत अच्छा खेलता है। वो तो एक जगह के ऊपर रहता है। मेरे को लगता है अगर पूरा लेगा तो मेरे को लगता है जगत का ही होगा। ओके, एंड महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में मेरे को इतनी ज्यादा आइडिया नहीं है। तो कृष्णा सर को है, उस्मान पटेल भाई को तो है, तो सबने देखा। इसके अलावा किसका है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। कृष्णा सर और उस्मान पटेल भाई का ही होगा, क्योंकि आगे केरला में भी उनका ही है, और पहले बाहर का प्लेयर का नाम हमने सुना इनका, ये वीडियो में भी इनका ही देखा है, उस्मान पटेल भाई का, कृष्णा भाई का ही देखा है। मतलब इतना पहले ही देखा है कि इतना सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के भी पहले ही देखा है। नहीं था इतना। हाँ, इतना नहीं था। सो थोड़ा प्लेयर्स के कुछ नाम लेना चाहूंगा। यू कैन जस्ट डिस्क्राइब दिस प्लेयर इन 2 or 3 words better. I can, as of I know I can, if the player... you know everyone. I guess you know everyone. If you don't know, don't describe. Okay. Just say I don't know. Okay. Ritik Patil. I know much idea. Or don't know much. Okay. Anil Meena. All of these may be more of Maharashtra kind of Yes. players. I have not... You not played against? Hitu Jadeja. Hitu Jadeja, so good. He used to play in cricket ball also. He is different. He has that bat swing like a golfer. Like a golfer. Jimmy Darbar. Oh, powerful hitter. He hits long. Really long. Really long sixes. And off the back foot also, he hits off sixes for offside also, covers area. In some Back foot punch you're talking about? back foot, he does that back foot punch. I don't see many players play that shot. जिम्मी भाई वो कहता है Back foot punch for a बैक six. फुट में कवर्स में ऑफ साइड में चक्का मारता है। मेरे को भी एक मारा था इंडिया कप में कोलकाता, एंड मेरे को लगा सुप्रीमो भी ऐसा कुछ शॉट खेला था उसने। राजू पार्ली. राजू बाल्दी इतना सिंपल है मगर इतना खतरनाक भी है। मतलब वो तो ऐसे करके मेरे को याद है एक बार करण अंबाला बोल रहे थे राजू भाई को, बोल रहे थे राजू भाई नेक्स्ट बॉल आप डालो, थोड़ा वार्म अप करो। तो राजू भाई वाज, ऑल अदर बॉलर्स विल बी लाइक दे डू रनिंग जंपिंग एंड ऑल, राजू भाई वाज लाइक दिस, एंड तो करण वाज लाइक अरे यार ये क्यों ये मजा ले रहे क्या। एंड जब वो बॉलिंग शुरू किया ना, अरे यार इतना 2-3 स्टेप में इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा है। मतलब वो तो ऐसे ही लिखता है सिंपल, मगर वेरी टफ बॉलर। सद्दाम खान इतना आइडिया नहीं है। सद्दाम बरेली, यस। सद्दाम बरेली यूपी, वो अच्छा ऑलराउंडर है, काइंड ऑफ अंडर। आपने बोला आइडिया नहीं, भूल गए थे। सद्दाम बरेली बोलना है, आपने बोला सद्दाम कुछ खान। सद्दाम खान मेरे को पता नहीं। बरेली मेरे को पता है ऐसे सद्दाम बरेली, हम साथ में खेला था कोलकाता में। बहुत अच्छा बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, अच्छा ऑलराउंडर। Your Malinga, Riaz Malinga. Riaz Malinga, as I told you, he is going to be playing all India level tournaments, all the matches, and next 1 or 2 years, he is going to be one of the few stars coming up from Kerala. Upcoming star from Kerala. There will be a lot, but he will be one of them. Vivek Mohan already proven all-rounder. He is so good. He is dependable in bowling and batting. Any team can depend on him in bowling and batting. Best captain you played under?
Ankur bhaiya, easily. Easily. Easily Ankur. Because I haven't played under other captains many matches. I have played few matches under Sumit Deklan, Nana sir. But most 90% of my matches we played against Ankur bhaiya only. No. Who is the best captain? Best captain. Best opener? Best opener, Jagat. Krishna sir and Jagat sir. Jagat bhai. I know Jagat. You are a big fan of Jagat, huh? Because I even if I'm not playing against him, I'm not playing the tournament. So I used to watch his batting. You know, what all shots he play and all that. Jagat is also coming to the interview, podcast. Acha. Let's see how much he talks about you. He won't talk. He's so he's playing in the top level and he's having lot of other players around him in his category. So for him, he won't even remember if you ask anything about me. But I will surely ask you because you are a big fan. So let's see what he thinks about you. And best finisher? Bunty Patel, no doubt. All time? All time you take for me Bunty Patel. Bunty Patel. Best Easy. opening bowler? Opening spell? Opening bowler, Vishnu Thakur bhaiya, Ankur bhaiya, and now at the moment Anurag Sashar. sir. And death bowling specialist? टेनिस बॉल में भी कभी हर बॉलर तो डेथ बॉलिंग के जैसे ही है. Still like फिर मैं लगता है विजय पावले भाई. विजय पावले भाई के यॉर्कर एंड बैक ऑफ द हैंड स्लोवर, उफ, so good. I used to watch Vijay Pawle के bowling also. Back of hand डिलीवरी. I talked with few batsmen. तो लोग बोलते हैं तो इतना easy नहीं है पिक करने का. अपने उस्मान पटेल का भी उस्मान पटेल भाई भी बोला है ना, क्योंकि वो विजय वाला भी केरला में भी आया था, तो उसी टाइम भी मैंने देखा था इनका बॉलिंग. एंड बेस्ट कीपर आपकी बॉल जो अच्छे से अजित मोहिते भाई. अजित मोहिते बहुत अच्छा कीपिंग कर रहे हैं. मेरे को वो भी मेरे को प्रॉब्लम आता है कभी कभी है ना, नया नया कीपर आएगा तो मेरा बहुत विकेट मेरे को मिस होता है. एड्ज तो कैच नहीं पकड़ता है और बॉल मिसरीड होता है, 22 जाता है. तो उनकी गलती भी नहीं, क्योंकि उतना आदत नहीं है, पिक नहीं करता है. अजित भाई इतना आसानी से कैच पकड़ता है. अजित भाई कीपिंग है तो मेरे को इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस अलग ही फील आता है कि विकेट आ जाएगा. क्योंकि अभी कैचेस पकड़ता है ना वो, तो बड़े बड़े बैट्समैन का अगर एक कैच छोड़ेगा तो वो मारेगा. अजित भाई है तो वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, मौका मिलेगा तो. एंड सेकंड बेस्ट I feel Sumit bhai is also good keeper, Sumit Dekle, but I haven't bowled with him like very much. Who is bad keeper for you? Bad keeper? All those part-time keepers are bad keepers only, no? Name few of those. No, there isn't any to name because part-time keepers we don't remember. Now you are just playing a safe game. No, because I'll have to name think. Few. Fardin is bad? No, Fardin, I haven't bowled against him. No, like when he is doing keeping, you have to name the keeper when I was bowling. No. Yeah, and you was bowling, yes. So Fardin was not there much. Maybe Ankur bhaiya. Bad keeper. Comparatively, because Ankur bhaiya used to know he'll stand up first and he'll go back suddenly and he'll collect the ball and he'll throw like this. No stumping. Ankur bhaiya used to do keeping like very rarely, but nice. Nice to see Ankur bhaiya doing that keeping. It's fun. Like it's fun. How you ever been a captain of a side at open level tournament? In Kerala, no, I used to be Not in captain. Kerala in open level. Open, no. I'm not that. Any desire to captain? Not at all. I don't want to be the captain because first of all, I'm not that experienced to be a captain. I don't have very much idea about all the players I'll be playing with. So I don't want to be the captain. Captaincy is a pressure game. Obviously, it's very. You can't handle that pressure. It's not about having the pressure because in Kerala, if I have the very good idea about all the players I'm playing with, then it will be good for me. And the opposite players also, if I have the idea. But me, बस 2 साल ही हो गया, मेरे को ज़्यादा पता ही नहीं. एक टूर्नामेंट में नए लड़का आ रहा है खेलने के लिए, तो उनके बारे में मेरे को कोई आइडिया ही नहीं. ऑपोजिट में बैट्समैन क्या खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, अभी भी मेरे को आइडिया नहीं. अभी भी आपने 3-4 नाम पूछा, शायद मेरे को देखेगा तो याद आएगा, फिर भी इतना आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए मेरे को कंफ्यूजन होगा ही होगा. किसी के साथ पूछना पड़ेगा, तो जिसको पूरा आइडिया है उसने ही करना अच्छा है ना कैप्टनसी. अशिक, आप महाराष्ट्रियन प्लेयर के साथ खेलते हो तो महाराष्ट्रियन टर्म्स कुछ सीखा आपने? महाराष्ट्र में कुछ सीखा आपने? अभी तो कुछ से नहीं सीखा, मतलब सुनने में अच्छा लगता है. एक ही चीज, एक ही नंबर 50 तो 50 है ना. अच्छा. वो सीखा आपने? और फिर मैंने कुछ गाली वगैरह नहीं सीखा है. समझ आता है लेकिन
गाली वगैरह मैंने नहीं सीखा क्योंकि आगे नहीं, बस समझ आता है कोई आपको देगा समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए अच्छा है, कभी भी खुशी है, कुछ भी बोलेगा तो बोलते रहो। तो आप कभी ऐसा करते हो केरला में, मतलब आपकी भाषा में गाली देते हो किसी प्लेयर को? केरला में जब मैं खेलता है ना तो मैं ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो कभी कभी देता है, तुरंत उसी टाइम ही रिग्रेट होता है, मगर जब बाहर आता है ना मैं इतना ज्यादा नहीं रहता है, काम। तो मेरा काम करके मैं चुप होता है। एज अ पर्सन आप क्या हो पर्सनल लाइफ में? आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? Not an introvert, but not an extrovert also, but I'm like बिट ऑफ मिक्सचर ऑफ bit of each. Because मैंने पहले सोचा था एक्सट्रोवर्ट हूँ, मगर मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ क्योंकि कभी कभी मेरे को अकेले रहना अच्छा लगता है, क्योंकि घूमने के टाइम भी अकेले ही जाता है, तो लोग पूछते हैं मेरे को अकेले कैसे जाता है भाई, केरला से पूछते हैं अकेले कैसे जा सकता है तेरे को, वो भी एक एक नया जगह पर। फिर मेरे को पता चला रहा है अकेले जाने के लिए भी मेरे को कंफर्ट लगता है, तो वैसे मिक्स। मतलब आप पहले सोचते थे कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, फिर आपको स्लोली रियलाइज हुआ कि आप I'm not an extrovert, but kind of both. नॉट एन इंट्रोवर्ट एज वेल। Not an introvert also. तो नए लोग से ऐसे मिलजुल लेते हो एकदम इजीली, नए प्लेयर से? वो तो Bonding हो जाता है? एडजस्ट होता है ना, एडजस्ट हो सकता है, वो तो आदत आ गया, कोई भी जैसे कोई भी कैरेक्टर तरीके का कैरेक्टर तो एडजस्ट होते ही रहता है। कौन से कैरेक्टर डिफिकल्ट होते हैं मैनेज करने के लिए, रहने के लिए साथ में? अगर थोड़ा गुस्सा वाला आदमी है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर कभी भी ऐसा किसी को मिला नहीं, मतलब इतना गुस्सा वाला। सब लोग जितना प्लेयर को मैंने मिला सब लोग मतलब अच्छा इजी है, इजी गोइंग है। फिर भी कौन है सबसे डिफिकल्ट? सबसे डिफिकल्ट थोड़ा जिससे आपको डर भी लगता हो थोड़ा? वो तो एकदम बड़ा सीनियर प्लेयर है तो हमको डर लगता है। सोचो अभी कृष्णा सर, नहीं तो नाना सर, नहीं तो मतलब इतना सुपर सीनियर तो हमको क्यों डर लगता है, मतलब हम कुछ, वो लोग इतना एक्सपीरियंस है और इतना प्लेयर के साथ टाइम स्पेंड किया है, अगर हम कुछ करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर बात में हम कुछ बोलने के टाइम उनको इतना रेस्पेक्ट नहीं मिला तो वो ऐसा हो सकता है ना। तो जब सीनियर प्लेयर के साथ बात करते हैं तो हम थोड़ा सोच के थोड़ा स्लो छोटा छोटा रिप्लाई देते हैं, हमको भी डर लगता है, अरे यार वो कैसे लेगा, हम जो भी बोलेगा तो वो कैसे लेगा, वो होता है। आप गिव और टेक रिलेशनशिप में बिलीव करते हो? गिव और टेक सोच के बोलना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आना। बिलीव नहीं करता, अगर आपको देना तो दे, कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है। सो आपकी ऑल टाइम प्लेइंग 11 में नाना होंगे, क्योंकि उनमें तो आप थे। ऑल टाइम प्लेइंग 11 में नाना नहीं हो गए, क्योंकि नाना एज ए वेरी गुड प्लेयर, एज ए बैट्समैन एंड अ कैप्टन, मगर अगर मैं ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनेगा तो जो नाना का पोजीशन में मैं दूसरा प्लेयर को रखा है ना, तो इसलिए नहीं होगा। क्या होगी आपकी प्लेइंग 11? अगर प्लेइंग 11 तो मेरा ओपनर हो गया कृष्णा सरन जगत, तो इजीली यस। वन डाउन आई विल गो विद थॉमस भाई, oh so good, easy hitter, 6 hitter, and 2 down I'll go with Sanju Kanodia, then I'll add Bandi Patel and Karan Ambala, 6 Karan तो आ गया, 6 हो गया। फिर then I'll pick Prathamesh Thakre. I feel kind of underrated all rounder, he is a great match winner and very useful both batting and bowling. Then I'll come with Ankur Bhai captain. Then my bowling lineup will be Shiv Thakur and Anurag Sarsar. Oh, okay, na 10, 11. Vijay Pavle. And 12th man? 12th one I will include Rajdeep Jadeja. Tell me something about this Prathamesh Thakre. Prathamesh Thakre, I have seen his batting and bowling, and if the pitch is turning, थोड़ा घूम मिल रहा है तो वो अच्छे से घुमाता है, bowling लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों घुमाता है, एंड बैट्समैन उसको देख के हमको नहीं लगा कि इतना अच्छा छक्का मारता है, और हर शॉट खेलता है, क्लासिक शॉट भी खेलता है, बहुत लंबा लंबा छक्का भी मारता है। तो मैंने बहुत देखे उसने मैच को जीता है, फिनिशिंग किया है, बॉलिंग से भी मैच को टीम को वापस लाया है, तो एक अच्छा ऑलराउंडर है वो। एक अच्छे ऑलराउंडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब क्या एक अच्छे ऑलराउंडर को अच्छा? कोई भी सिचुएशन में बॉलिंग डालना पड़ेगा और बैटिंग भी करना पड़ेगा, वो तो करते ही रहता है, वो प्रथमेश ताकरे इतने साल करते रहता है। क्यों? लेकिन अगर टॉप 5 में किसी से भी पूछूँ इंडिया के ऑलराउंडर्स में, तो हार्डली मुझे लग रहा है कि चलो टॉप 5 मतलब टॉप शायद ही किसी कोई प्रथमेश ठाकरे का नाम लेगा। वो भी मैं भी वही सोच रहा, मैं भी वो आपके लिए वो अंडररेटेड बोला है।
शायद ये इसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होगा शायद, बाकी सबका खुद वीडियो डाल रहा है, बाकी सब फैन फॉलोइंग भी डाल रहा है, शायद मेरे को लगता है इनका फैंस इतना ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया में नहीं डाल रहे, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि जो लाइव मैच आप देखा होगा ना इसका, वो तो कुछ इम्पैक्ट करते रहता है बैटिंग में या ना बॉलिंग में। क्या लगता है, जरूरी है सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना? मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी मेरे को लगता है थोड़ा ज़रूरी है ही है चांस मिलने के लिए, क्योंकि जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है शायद सबको देखने के लिए, सब पूरा जगह वो पहुंचने के लिए सोशल मीडिया में थोड़ा इन्फ्लुएंस है, तो सब लोग देखेंगे, अरे समझेगा, अरे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जीसीसी कंट्री से में भी इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट को बहुत फॉलोअर्स है, बहुत फॉलो कर रहा है, तो अच्छा से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है तो सब लोग देखेंगे, उधर भी चांसेस मिलेगा, तो वो तो थोड़ा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है हर टूर्नामेंट में, हर जगह का टूर्नामेंट में मेरे को चांस मिलना है, तो थोड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है? आप भी काफी सोशली एक्टिव रहते हो। बहुत जब मैं केरला में जब खेल रहे थे ना, पहले अभी नहीं, 3-4 साल पहले, मैच खत्म होने के पहले मैं फटाफट एडिट करके डालता सोशल मीडिया में। मेरे दोस्त लोग बहुत लोग मजा कर रहे हैं मेरे को, अरे तुम क्या कर रहे यार, इतना पागल हो तुम। मगर बाद में इन लोग अभी शुरू किया करने के लिए, अभी उन लोग बोल रहे यार हम भी पहले ऐसे कर रहे थे, क्योंकि मेरे को पहले चांसेस मिला, ये वीडियो देख के मेरे को चांसेस मिला था। तो कभी भी कोई पूछेगा तो जल्दी जल्दी मैं फटाफट मेरा लिंक भेजता देखो करके, तो वो इम्पोर्टेंट था। मैंने उसी टाइम सोचा नहीं था, मैं उसी टाइम थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा था एडिट करके डालने के लिए, थोड़ा म्यूजिक लगा के। सो बाय फॉर्चुनेटली इट हेल्प्ड, वो तो यूजफुल हो गया। एकदम सुपरस्टार प्लेयर को जरूरी नहीं पड़ेगा, तो बाकी सबको मेरे को लगता है जरूरी है ही है। बॉलर सुपरस्टार क्यों नहीं होते? बॉलर सुपरस्टार, वो मैंने बोला टेनिस क्रिकेट, मतलब पूरा क्रिकेट ही, यू थिंक बैट्समैन, I think batsmen favored only in normal cricket also. If you tell Sachin Tendulkar is the god of cricket, he's a batsman. Anyone if you ask the favorite player, most of them will tell Virat Kohli, Rohit Sharma, I mean batsman only, no? So it's generally like that. Cricket is basically bit of batsman favored, but bowlers do have the greater impact. Everyone says that bowlers wins your tournament. बिकॉज अगर जीतना है तो बॉलर लोग को हर मैच में पूरा एफर्ट से अच्छा से करना पड़ेगा। बैट्समैन लोग अगर 1-2 मैच में अच्छा नहीं करेगा तो भी टीम जीत जाएंगे, टीम तो आगे जाएगा। बॉलर लोग को टीम आगे जाने के लिए हर मैच में अच्छा करना ही पड़ेगा। Who's your favorite international cricketer? AB de Villiers. ABD? Easily. Because even after his retirement also I used to watch his videos, matches. So good. It gives goosebumps, no? When I used to watch his matches live, it gave me goosebumps. So good. So you are a RCB fan? RCB fan. All time? All time. So I had my studies in Bangalore. So that connection with Bangalore has come, and ABD playing in RCB. So So don't you think he retired little early? I do think, but early retirement age was just 36. He's such a great player, such a great legend, such a great individual. So I respect all the decisions he takes. He will have his own reasons. I read a lot of quotes and rumors. I don't know whether it is true or not. So I heard that after in 2015 World Cup, 2015 World Cup का साउथ अफ्रीका कैप्टन था ना वो, तो जब प्लेइंग 11 बना रहा था तो साउथ अफ्रीका में ऐसा कुछ था कि प्लेइंग 11 में, हर प्लेइंग 11 में 3 या 4 अफ्रीकन नेटिव प्लेयर्स को भी प्लेइंग 11 में रखना पड़ता है। तो मेरे को लगता है डिविलियर्स को कुछ इसमें मैनेजमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था। फिर इसके बाद डिविलियर्स को जो डिसीजन को मैनेजमेंट मना किया, तो ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर उसने शायद मेंटली टायर्ड हुआ होगा, क्योंकि वो इतना एफर्ट डाल रहे, उतना पीक ऑफ हिज फॉर्म था तो 2015 में, इतना मेहनत कर रहे हैं मतलब वो साउथ अफ्रीका जीतने के लिए, मगर मैनेजमेंट इतना उसको डिसीजन को हेल्प नहीं कर रहा है, और फैमिली भी वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली टाइम भी। तो वो शायद सोचा होगा अब ख़त्म हो गया, मतलब उसका डिसीजन है, हम उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ उसने किया है हम रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, तो ये भी उसका डिसीजन है, ये भी हम रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका पर्सनल इश्यूज होगा ना शायद। क्या आज तक की वो सबसे शॉकिंग न्यूज़ थी आपके लिए क्रिकेट? बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, और मैंने कभी कभी ऐसा सर्च करते रहता,
अगर या क्या ये रिटर्न करेगा या क्या रिटर्न करेगा। फिर इसके बाद लेजेंड्स क्रिकेट में क्या खेलेगा या वो भी बहुत वेट किया, बहुत हाँ अभी रिसेंटली खेला देखा, बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत। And toying with the bowlers. One catch he took, it was so amazing. He ran back, he turned, twisted, and he took the catch. His hand-eye coordination as an athlete is so good. So good. Inspiration for everyone. And what about bowlers? Favorite bowler? Favorite bowler, yes. Favorite bowler, I'll go with Mohammad Siraj. Mohammad Siraj, because of the current performance? Or? No, it really made me feel more respect towards him, but not only because of the current form, but after knowing his story from the background he has been as a tennis ball player. एंड मैं हैदराबाद गया था एक बार, तो उसका एक दोस्त है अहमद बोल के, तो मेरा भी दोस्त है वो, तो उसने बोला ISPL का ट्रायल के लिए गया था, तो उसने बोला अगर सिराज हैदराबाद में है तो शाम को उसका वो चौटा ग्राउंड है, वो बचपन से खेल रहा था उधर आएगा। मैंने सोचा वो तो ऐसे झूठ बोल रहे, तो इतना बड़ा प्लेयर हो गया वो कौन आएगा उधर, और उसने बोला नहीं वो आएगा ही आएगा। तो मैंने गया ग्राउंड में, इतना मतलब इतना छोटा ग्राउंड है, इतना लोग खेल रहे, इधर उधर 5-6 पिच बना के खेल रहे, फिर भी वो ये आ गया, इसका गाड़ी लेके आ गया, रेंज रोवर कुछ गाड़ी था, आ गया उधर, उनके साथ जो बचपन का दोस्त था उसके साथ ऐसे बात कर रहे थे, खेल रहे थे। तो फिर उसका कहानी मतलब सुना होगा, मतलब टेनिस बॉल से खेल के इतना ये लेवल में आ गया, इतना मेहनत किया, तो वो सब सुन के हमको बहुत वो रेस्पेक्ट और प्यार क्या बोलो बहुत अच्छा लगा। आपके फोटो भी शायद उनके साथ में है? हाँ, फोटो खींचने के लिए गया था ना मैं, उसके मिलने के लिए गया था, और जब मिलने के टाइम इतना डाउन टू अर्थ है, एकदम सीधा आदमी। उसका कोई भी वीडियो आप देखो, मैच के बाद वो वीडियो सब देखो, मतलब अभी भी इतना सीधा सिंपल आदमी है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, जैसे आपने बोला ये काफी डाउन टू अर्थ है, आप भी काफी डाउन टू अर्थ हो? I don't feel like I'm as down to earth as like compared to other players, but मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि डाउन टू अर्थ होना ही चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मेरे को जो अच्छा लग रहा है, जैसे करना चाहिए वैसे ही कर रहा हूँ मैंने। मेरे को ऐसा कोई भी मेरे के बारे में नहीं बोलना है कि इतना अच्छा डाउन टू अर्थ, ऐसा बोलने की मेरे को नहीं लगता इतना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को क्या लगता है, जैसे करना लगता है मैं तो ऐसे करते जाते ही रहता है, तो लोग कुछ ना कुछ बोलेगा तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसमें। आपके कहने का मतलब जस्ट टू इम्प्रेस समवन यू शुड नॉट डू थिंग्स जस्ट टू शो दैट यू आर, बिकॉज़ ऐसा करेगा तो थोड़ा देर के लिए कर सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म यू कांट डू दैट, यू फील अनकंफर्टेबल, सो दैट इज द थिंग। AB de Villiers, you said when he was batting you used to get goosebumps. Yes. Is there any batsman in tennis cricket you are watching live match and you get goosebumps watching any batsman batting? A lot, plenty of batsmen. I used to watch matches a lot. Jagat Sarkar हो गया. Jagat Sarkar, you are a big fan of. I think if Krishna sir हो गया. If you name this guy again in the podcast, I think we're gonna stop here. Because of the short selection he has, and it's going to be a end. Then I'll keep him aside, and Yes. Krishna sir हो गया, obviously, and These two names don't take Bunty this name Patel. again. Bunty Patel, okay. Any others name which I have not heard in this in this podcast? Other than that, ऐसा कोई नहीं है, बस मैच देखता हूँ, मतलब इतना गूस बम्स वाला फीलिंग दूसरा मतलब कोई बैट्समैन नहीं है, बस देखता हूँ और एक एक शॉट देखता है। नदीम तनूरी वो जो एक पुल शॉट खेलता है साउथ अफ्रीकन जैसे, मतलब डिविलियर्स, राइली रोसो, डिकॉक सब खेलता है, ऐसा एक पिकअप शॉट है इसका नदीम तनूरी का, बहुत अच्छा है, मतलब वो तो अलग ही लेवल, मतलब पिकअप पुल शॉट में, मतलब वो तो लेंथ पिक करके खेलता है, वो तो बहुत अच्छा है, दिखने में इतना मजा आता है, एक एक शॉट देखने में कैसे, क्या मतलब क्या कुछ वो जो पुल करता है ना, मतलब रिकी पॉन्टिंग टाइप, not a Ricky Ponting type, not a Rohit Sharma type, it's kind of Dicock, Divilliers type, it's a pick-up pull shot जो कहता है वो तो, मतलब हाँ देखने में इतना मजा आता है, मतलब ऐसा एक एक प्लेयर का एक एक शॉट देख के गूस बम्स आता है। तो ये शॉट हो गया, और संजू का वो रिवर्स मैंने बोला था ना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और कभी भी बबलू पाटिल छक्का मारेगा तो भी अच्छा लगेगा, इतना दूर दूर जाता है लगेगा तो। बबलू पाटिल, कुछ बताओ उनके सिक्सेस के बारे में। बहुत मतलब कि क्या गोल्फ बॉल जाता है ना, ऐसे जाता है दूर, इतना लंबा छक्का मारता है। मैं उनके साथ राजस्थान में भी खेला था सीजन क्रिकेट,
मतलब बहुत टूर्नामेंट होता है ना राजस्थान में, तो मैं लाइव देखा, इतना लंबा लंबा छक्का मारता है, इजी मारता है वो, बहुत अच्छा लगता है देखने में इजीली। इजीली। आपने कहा ऑफ कैमरा कि मैं 1-2 साल में रिटायर भी हो सकता हूँ। So- क्योंकि मेरे को लगता है बॉलर्स के लिए द लॉन्गेविटी कंपेयर टू बैट्समैन इज लेस। अभी तो 2 साल हो गया, अभी 2-3 साल मतलब 5 साल हो गया, तो इसके बाद भी अगर मेरे को बड़े लेवल टूर्नामेंट में खेलना है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करते ही रहना पड़ेगा। तो मेरे को अभी नहीं लगता है मेरे से नहीं होगा, मगर देखना पड़ेगा वो उसी टाइम में दिमाग में क्या चलेगा, कैसे चलेगा। But if you retire after 2 years, are you satisfied with your career? ऑब्वियसली सेटिस्फाइड। आई टोल्ड यू, अगर कल भी रिटायर को तो सेटिस्फाइड हूँ मैं, क्योंकि अगर मेरे को खेलना है तो मेरे को जो टीम में मैं खेल रहा है मेरे को कुछ इम्पैक्ट देना, कंट्रीब्यूट करना है। मेरे को ऐसे नहीं खेलना है कहीं Just for the name's sake. नॉट ओनली जस्ट फॉर द नेम्स। कभी कभी मैनेजर लोग ऐसा भी करता है, पैकर को बोलता है हमारा ये जो 5 प्लेयर हो गया और इसको भी ऐड करो, उसको भी ऐड करो, तो पैकर बोलेगा नहीं उसको नहीं चाहिए, वो तो अभी फॉर्म में नहीं है। तो मैनेजर बोलता है नहीं वो तो हमारा परमानेंट है, उसको भी खिलाना दो। फिर पैकर ओके ठीक है, ऐसे मेरे को नहीं खेलना है। मेरे को खेलना है अगर मेरे से कुछ इम्पैक्ट कर सकता है वो, जैसा अगर किसी को मतलब नहीं चाहिए तो हाँ, मेरे को जो लेवल में मेरे को खेल सकता है उसी टाइम में मैं केरला जाएंगे वो हाँ खेलेंगे। तो वैसे ही अगर मेरे को खेलना तो कुछ इम्पैक्ट तो करना ही चाहिए, नहीं तो मैं दूसरा लेवल मतलब थोड़ा नीचे जाके खेलेंगे। क्या विश लिस्ट में क्या आपके? विश लिस्ट इन लाइक in cricket, yes, or in life you can tell anything. Both, tell me both. लाइफ में क्या है, क्रिकेट में क्या है? क्रिकेट में अब ज्यादा से कुछ नहीं, मगर मेरे को था ये लेवल खेलना है तो वो तो खेल चुका है। तो अभी क्रिकेट में कुछ विश लिस्ट नहीं है। लाइफ में तो कुछ धंधा करके क्रिकेट से जो पैसा मिल रहा है वो कमा के उसमें से कुछ इन्वेस्ट मतलब इनकम होना चाहिए मेरे को, वो तो मेरा एक क्या बोल रहे हो विश था। प्लानिंग चल रहा है कुछ? प्लानिंग तो चल रहा है, तो कमा रहे, सेव कर रहा है। हाँ। तो अभी कोई अच्छा मतलब मेरे को लगता है थोड़ा अच्छा तो इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट में तो प्रॉफिट और नुकसान तो होते ही रहता है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर क्रिकेट से पैसे जमा करके वो कमाना मतलब वो फीलिंग थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे को लगता है, बस अच्छा रहेगा। बट कुछ ऐसा बिजनेस है माइंड में कुछ करना? अभी कोई नहीं है। अभी 1-2 साल भी खेलेंगे, जितना कमा सकते उतना कमाएंगे, फिर कुछ सोचेंगे उसके बारे में। फिर कुछ सोचोगे? जितना सारा आपने पॉडकास्ट किया है, सब बड़े बड़े प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। हाँ। तो जब आपने मेरे को बुलाया मेरे को लगता है अरे यार मतलब इतना सारे प्लेयर्स है और मेरे को मतलब मेरे लिए इतना बड़े चीज़ है ये, क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा खेला ही नहीं है। और आपको क्यों लगेगा इसको बुलाओ, और डू यू रियली फेल्ट दिस गाय डिजर्व्स टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट along with the other players, super senior players you are doing podcast with? So what made you, or how did you felt? How did I felt? First of all, there are many players, like from Nana to everyone. When I ask about the best bowler, not everyone, but every second person used to tell your name, that Ashiq Ali is something different bowler, your spin cutter is very different bowler. And second reason why I called you, because I want to call player from every state. Nice. So when I'm thinking about South, the only name comes to my mind is Ashiq Ali. That feels so good. And it's a good thing or a bad thing, I don't know. It's a bad thing because in entire South, if there is only one name coming up mind, Ashiq Ali. So it's a sad thing, because if you compare Bollywood fans to your South Indian fans, it's cult. Rajni sir, Ram Charan sir, and even if Sanju Samson is not selected in the team, they go crazy. They go crazy on Twitter and everywhere. On that thing, I can guarantee you, in upcoming 1 year, within 1 year, there will be plenty of players from South, especially from Kerala. So that thing is for sure. That I can confirm you. So for me to connect with them, your audience, I want someone like you. It's okay. Can I say? Understood. And it's not just for my sake. You are a good player, because every second player, Ashiq is a good bowler. Even Nana name you in the playing. That really. So there is something in you. Even I feel I'm so good at the moment. I rate myself as one of the best at the moment. But I was just thinking like I'm not that experienced. Like just 2-3 साल ही हो गया खेलने के लिए, तो बस इसलिए पूछा, क्योंकि बाकी सब लोग
बहुत साल खेल चुका हूँ, इतना एक्सपीरियंस हूँ, तो कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस वाला मैं ही हूँ, तो इसलिए पूछा बस। नहीं, बट आपसे बात करके आई रियली एंजॉयड एंड मैं सोच रहा था कि आप हिंदी में कैसे बात करोगे, बिकॉज योर हिंदी इज नॉट, हिंदी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं बाहर आके ऐसे से बात करके बट सीखा है आपको ना। पता है, एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं आपके हिंदी के बारे में, हिंदी में आपका टोन थोड़ा सा साउथ वाला है, बट योर हिंदी इज परफेक्ट। बट कभी कभी वो जो ग्रामर का मिस्टेक आता है ना, और कभी कभी मैं थोड़ा आई फील लाइक लॉस ऑफ वर्ड्स, मतलब कभी कभी मेरे को ये सोचना वर्ड सोचना पड़ता है, ऐसे फ्लुएंट नहीं बात कर सकता, सोचना पड़ता है, फिर भी मैनेज कर सकता हूँ। नहीं, पैर मैनेज से तो आप बहुत अच्छा ही कर सकते हो, Thank you, thank you, because thank you manage so नहीं, much. so बहुत अच्छा कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आप जैसे मेरे को ये जो पसंद है, क्योंकि एक एक नया जगह जाना है, उनके साथ बात करना है। वैसे भी मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज अच्छा बात कर सकता हूँ, कन्नड़ा, तमिल, ये सब बात कर सकता हूँ, ये हिंदी भी वैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, तो इंग्लिश, तो लैंग्वेजेस एंड ऑल आई फील कंफर्टेबल इन मैनेजिंग एंड टॉकिंग विद पीपल इन देयर लैंग्वेज। इट फील्स गुड, दे फील वेरी कंफर्टेबल, एंड सो दैट वी कैन, हमको भी बहुत सारे पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो वो अच्छा लगता है मेरे को। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। समझो कि देयर इज अ सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन, एंड a teammate of yours, a Maharashtrian teammates of yours comes to your end and giving you advice which are not good at that moment. So आपको मराठी में उसको क्या बोलना है पता है आपको? मैं आई एम टीचिंग यू, जस्ट लर्न। Tell me. से आईच्या गावात गप बस। चुप जाके बैठो। ये आपको कैसे समझा? आपका एक्शन में, मतलब जो सिचुएशन में वही बोलता है ना लोग। क्या क्या समझे? फिर आप बोलो एक बार, गप बस, गप बस, खाऊ नकोस, खाओ नकोस, मतलब चुप जाके बैठो, मेरे को लगता है ऐसा। दैट्स करेक्ट। अब ये किसको बोलोगे पता आप? कोई भी ऐसा आके हमको चिल्लाएगा तो? सीनियर महाराष्ट्रियन प्लेयर्स को। अरे सीनियर के साथ बात ही नहीं करता। चलो, आपके शो का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मतलब इतना क्वेश्चन के मेरे कैसे आंसर करो, मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, मगर जब बात शुरू हो गया मेरे को लगता है मैं आंसर से भी ज्यादा कुछ ज्यादा बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा। जैसे मैंने सोचा डिफिकल्ट था, ऐसा नहीं था, बहुत कंफर्टेबल था। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बता रहा था। आप पूछ रहे थे ना, कैन आई सी योर क्वेश्चंस, मगर मैं क्वेश्चंस बताता फिर प्रिपेयर करते। क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ प्लान नहीं करना है, कुछ आंसर रेडी नहीं करना है। जब आप पूछते हैं उसी टाइम मेरे मन में क्या आता है वही बोलना चाहता हूँ मैं। तो यही रॉ रिएक्शन चाहिए होता है प्लेयर्स। हाँ, वही होना चाहिए ना सबको। हमको तो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस इज मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैच आल्सो, सो वैसे भी जिंदगी में भी। सो एक फाइनली, नाना इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, और आपने नाना को प्लेइंग 11 में नहीं रखा, सो आई एम वेरी हर्टफुल। No, it's Nana. Even I also love Nana. The lot of players are there I love, but to be making in the playing 11, it's each sport. See, Fardeen is a very good opening batsman. I love Fardeen's batting, but I can't put him in my playing 11 just because I Because you found have Jagat and Krishna. That's So, all. Story khatam. So that is the thing. It's not about that. While you making a 11, each sport you pick one player. No, for each sport. For all-rounder, instead of Prathamesh Thakre, I could pick Saroj Dada. बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे लोग को लगता है वो पोजीशन में बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए ये अच्छा रहेगा टीम के बैलेंस के लिए। In every podcast I learn something. So in this podcast the lesson I learn, like 50% of Ashik Ali is of Krishna sir, Jagat and Bunty Patel. ना, बिकॉज आई एम अ बॉलर, मैं इनका बैटिंग क्यों देखता हूँ मालूम है? क्योंकि वो क्या क्या शॉट खेल सकता है, खेलता है, एक एक बॉलर को एक एक लेंथ में वो क्या शॉट ऑटोमेटिक आता है इसका, तो मैं देखते ही रहता है। तो क्योंकि मेरे को भी प्रिपेयर कर सकता है, मेरे को पता है ये लेंथ में तो ये शॉट आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। इतना टैलेंटेड, इतना टॉप लेवल में क्रिकेट में खेलता है। जगत का मैं क्यों इतना फेवरेट हूँ क्योंकि वो हर शॉट खेलता है, और मैं जीसीसी में भी उनका बैटिंग देखा। जीसी में ताकि वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के ऑपोजिट रिवर्स सब खेलना इतनी ईजी नहीं है, और हवा का भी बहुत फैक्टर होता है। हवा देख के उसी साइड में खेलना है, वो इनिंग्स कैरी करता है और ओपनिंग खेलता है, और इतना हर टूर्नामेंट में हर ऑपोजिट बेस्ट बॉलर के साथ वो ऑपोजिट खेलता है। ऐसा खेल चुका है बहुत सारे प्लेयर्स, बट एट द मोमेंट मैं जो देखा है इसका ही ज़्यादा देखा है, तो इसलिए वो जो शॉट खेलता है देखने में भी इतना मज़ा आता है, जैसे वो इनिंग्स कैरी करता है,
वो और फील्डिंग मतलब जब सब उसका सब बहुत अच्छा ही दिखता है मेरे को। एनीथिंग कुछ बचा है और? अगर टाइम है तो मैं बोलेगा तो बोलते ही रहेगा, मतलब आगे तो कुछ नहीं है। नहीं, आप अपार्ट फ्रॉम जगत कुछ बचा है? कौन आपको मेरे पॉडकास्ट पे आना चाहिए? बंडी Must. पटेल, मस्त है बंडी पटेल। जगत सरकार तो आ रहा है, और बंटी पटेल इज आल्सो कमिंग। बंडी पटेल also coming। लगाओ बंडी पटेल also coming। कॉल लगाओ, लेट्स हैव अ लाइव कॉल टू बंटी पटेल। बंडी पटेल बहुत, लेट्स सी इफ ही आंसर। because indoor, no, since indoor shoot Bandi Patel will come, otherwise Bandi Bhai is very beauty conscious and he'll tell जल्दी करना। इतना लग गया? वो तो शायद को फोन नहीं उड़ेगा, वो तो गुम। बंडी भाई आपने फोन उठाया? कहाँ है वो बंडी भाई अभी? घर पे भाई। अच्छा घर पे है, किधर भी घूमने के लिए नहीं गया? नहीं गया ना। अब बंडी भाई केला मैं अभी राजस्थान खेलने के लिए आया है, मगर रास्ते में इधर मुंबई में वो पॉडकास्ट है ना जसप्रीत मेहरा का, तो उसने बोला बंडी भाई को बुला, वो देखेंगे अगर बंडी भाई फोन पिक करेगा या नहीं। मैंने बोला चांसेस नहीं है, बंडी भाई तो पूरा टाइम घूमते ही रहता है। तो अभी वो पूछ रहे हैं बंडी भाई क्या आएगा पॉडकास्ट में। ना जब सर से बात हुआ ना मेरा, हाँ मैंने बोला ये तो इंडोर शूट है ना, इंडोर शूट है तो बंडी भाई आएगा। अगर बाहर है तो बंडी भाई बोलेगा अरे यार धूप ज्यादा है, मेरा स्टाइल जाने वाला है। ओके ठीक है बंटी भाई। बंटी भाई अभी शूट चल ही रहा है लाइव कैमरे पे, तो आप अपने फैंस के लिए भी बता दो कि आप कब आ रहे हो। अरे जल्दी आप कितना मतलब हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, कितना? ये मन के बाद पक्का हो जाए, आ जाओ। 1 महीने में आओगे? हाँ पक्का। चलो ब्रेकिंग न्यूज फॉर बंटी पटेल फैंस, बंटी पटेल आ रहे हैं 1 महीने में। सो ओके बंटी भाई, थैंक यू ओके भाई। खुशबू गुजरात की क्या इंसान है, डेंजरस भी है एज अ प्लेयर एंड इतना डाउन टू अर्थ। मतलब मैं कभी भी सोचा नहीं बंडी भाई के साथ मेरे का ऐसा बात कर सकता है। मतलब इतना, जब मैं वो 2011-12 में मतलब जब मैं हम स्कूल में पढ़ रहे थे ना, उसी टाइम इतना बड़ा नाम था बंडी भाई का। तो इतना साल हो गया, इतना बड़ा प्लेयर है, फिर भी जैसे हम बात करते हैं ना तो इतना इजी से बात करता है। तो उम्र आपकी सेम ही लग रही मुझे। वो तो बहुत छोटे से शुरू हो गया ना बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए, और इतना नाम भी कमाया, इतना फैन फॉलोइंग भी है, तो वो तो होगा ना। उम्र तो मेरे को लगता है 32-33 से उतना ही होगा। 32 हाँ, योर एज? मेरा 31। हाँ मतलब सेम। हाँ सही। स्पॉन्सर्स के बारे में कुछ बोल दो, भी इतना बोल ही रहे हो तो। हाउ यू डील विद स्पॉन्सर्स? पैकर्स यस। हाँ पैकर्स, मतलब कभी कभी हमको हारेगा तो हमारा परफॉर्मेंस के भी अलावा मतलब ज़्यादा हमको दुख हो रहा है, उनका भी जो जितना मेहनत उसने किया, जितना पैसा उसने खर्चा किया, वो सोच के हमको कभी कभी नाराज होते ही रहता है। अगर पैकर्स नहीं है तो क्रिकेट चलेगा ही नहीं है ना। वो तो पिनकल, मतलब क्या बोले, पिलर ऑफ दिस टेनिस बॉल क्रिकेट। वो तो एक एक स्टेट में है मेन ज़्यादा मेरे को लगता है गुजरात, महाराष्ट्र ये एरिया में होगा। पैकर्स भी बहुत कम है, इसलिए ये केरला जैसा छोटे छोटे गांव में ज़्यादा प्लेयर लोग बाहर नहीं आ रहा है। वैसे भी बिहार, यूपी में भी आते हैं, मतलब बिहार एंड द नॉर्थ ईस्ट, उधर भी क्रिकेट बहुत चलता है। त्रिपुरा में भी चलता है, आसाम में भी चलता है, मगर ऑल इंडिया लेवल आप देखेगा तो थोड़ा कम है ना कंपैरेटिवली। तमिलनाडु, कर्नाटक में क्रिकेट चलता है, मगर ज़्यादा ये हल्का बॉल का ही है। तो अभी भी उन लोग थोड़ा समझ में आ गया ये, तो उन लोग भी लीग कर रहा है ना, अभी बहुत लीग आ रहा है। साउथ इंडियन वाला भी आ रहा है, ऑल इंडिया लेवल भी आ रहा है। तो आने वाला 1-2 साल में नहीं, अभी पता नहीं अभी ISPL ने मतलब क्या रूल रखा है, तो देखना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट सीजन ISPL में चांस नहीं मिलेगा तो खेलेंगे देन, बट आपको तो चांस मिलेगा ही ना। नो वो तो बोल नहीं सकता। अगर ऑक्शन में आएगा तो मैं बोल रहा हूँ मिलेगा। ऑक्शन में आएगा तो मिलेगा। अगर ऑक्शन के पहले 2 सिलेक्शन है ना, अगर कोई सेलेक्टर आके एक दिन उसको लगा ये वो दिन में अच्छा नहीं करेगा तो अरे उसको छोड़ दे ऐसा। क्योंकि हर साल मेरे को लगता है 20% तो नया प्लेयर तो आएगा, तो ये जो खेल रहा है उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो ईजी नहीं है, मेहनत तो करते ही रहना पड़ेगा। अभी तो सीजन शुरू होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा ही करना पड़ेगा। आपके एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप बहुत सारी अलग अलग टीम से खेलते हो,
सो आउट ऑफ 10 पैकर्स में कितने पैकर्स अच्छे हैं और कितने पैकर्स अच्छे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसा दे देते हैं टाइम पे? वो तो बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर्स है, क्योंकि कभी कभी हमको पता ही नहीं होगा पैकर्स ने पैसा दिया है या नहीं, मैनेजर्स ने पैसा दिया है या नहीं, और इसके बीच में कोई दूसरा होगा जो कनेक्ट कर रहा है पैकर्स को और मैनेजर्स को, और नए नए पैकर्स भी आता है। बाकी जो जितना रेगुलर पैकर्स है ना, वो सब पेमेंट तो बराबर ही देता है, मिलता है। वो तो रेगुलर पैकर्स। मगर एक एक जगह पर एक एक टूर्नामेंट के लिए बस नए नए पैकर्स आता है, उन लोग को हमको मतलब बोल नहीं सकता है क्या होगा कैसे होगा, वो सब ये मैनेजर लोग देखता है ना, तो मैनेजर को भी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि नए नए पैकर्स बाद में भाग जाता है, मतलब मैच हारेगा तो मैनेजर लोग फंस जाता है, तो मैनेजर को भी दिमाग कितना खराब होगा, इतना प्लेयर्स को पेमेंट देना है, तो वो भी बहुत डेंजर काम है जो नीलेश भैया कर रहा है, बहुत डेंजर काम है। आपके पैसे फंसे? पैसे फंसे हैं। झारखंड में गए थे एक बार कृष्णा सर के साथ झारखंड गए थे। एयरपोर्ट में मैनेजर लोग 3-4 गाड़ी भेजे थे, स्कॉर्पियो एंड बड़े बड़े गाड़ी भेजे थे। कृष्णा सर के एक डाई हार्ड फैन थे, ऑटो लेके आया एयरपोर्ट से, कृष्णा सर को गाड़ी में बैठने के लिए नहीं छोड़ रहे, वो बोल रहे कृष्णा सर मेरे ऑटो में बैठना ही बैठना है। फिर उसने नारियल का पानी दिया कृष्णा सर को ऑटो में बैठा दिया, फोटो खींचा, 1-2 किलोमीटर ऐसे चला गया, फिर बोला अभी आप गाड़ी में जाओ। तो वहाँ तो वो तो अच्छा एक्सपीरियंस था। कृष्णा सर का फैन फॉलोइंग इतना अच्छा है। राजस्थान में भी एक गाँव में गया था मैंने, गांव मतलब एकदम रूरल एरिया, हमको लग रहा है कि इधर तो कोई भी ज़्यादा लोग क्रिकेट नहीं देखता है ऐसा लगता है, मगर कृष्णा मतलब हमारे साथ पुणे का बहुत प्लेयर्स था, 7-8 प्लेयर्स था, बस कृष्णा सर को सब लोग पहचानता है, अरे ये कृष्णा सर है ना, मतलब कृष्णा सर देख को सब लोग आता है। तो कृष्णा सर का फैन फॉलोइंग पूरा इंडिया जिससे में बहुत अच्छा है। ओके, तो झारखंड में क्या हो गया, झारखंड में से जा रहा था, वो भी एक गाँव में था, वैसे ही वो एक नया पैकर था, तो उसने पैसा नहीं दिया, तो मैं कृष्णा सर ने मेरे को बुलाया, तो कृष्णा सर बोला ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने बोला अरे कृष्णा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्णा सर हमको ऐसा बोल रहे हैं, कृष्णा सर हमको पता है ऐसा होते रहता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने ऐसे निकला, ऐसा हो गया है, एक एक जगह पर होता ही रहता है ऐसा, बट मैक्सिमम नहीं होता। मैक्सिमम नहीं होता, तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं इतना, मतलब एक 8-10 टूर्नामेंट खेलेगा तो इसमें एक तो ऐसा वाला स्पॉन्सर के मतलब पैकर को मिलना ही मिलना है, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, हमको पहले नहीं पता होगा ना। फिर आप कोई फिक्स टीम से क्यों नहीं खेलते, एक रेगुलर टीम? रायगढ़ में ही खेलता है, मैं 2 साल रायगढ़ में ही खेल रहा हूँ। सही चल रहा है सब सही चल रहा है अभी तक, सब चल रहा है अभी तक, क्योंकि अब तक रायगढ़ कला में कोई भी टीम में नहीं खेला जब कहाँ रायगढ़ का एंट्री था, अब तक मतलब 2 साल हो गया। अभी तो नया सीजन शुरू हो रहा है, नया सीजन में बोल नहीं सकता, मतलब दूसरा टीम में अगर चांसेस अच्छा मिलेगा तो जा सकता है। अब तक मतलब क्योंकि नीलेश भाई ने मेरे को ISPL में चांस दिया, बाहर का टूर्नामेंट में चांस दिया, इसलिए अभी अब तक 2 साल पूरा नीलेश भाई का टीम में भी खेला, और कभी भी मैंने नीलेश भाई को कोई भी डिमांड नहीं रखा है, क्योंकि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इतना चाहिए उतना चाहिए, जीतेगा तो इतना चाहिए, हारेगा तो इतना चाहिए, कुछ भी नहीं रखा है, जितना वो दे रहा है वही ले रहा है मैं, क्योंकि वो जो रेस्पेक्ट है ना नीलेश भाई के साथ, तो इसलिए। मगर मेरे को मालूम है ये तो ज़्यादा जाने वाला नहीं है, हमारा करियर 2-3 साल में अगर ख़त्म करना पड़ेगा तो वो टाइम में जितना कमा सकता है उतना कमाना है ना, तो इसलिए अगर कोई भी अच्छा टीम के साथ अच्छा टूर्नामेंट अच्छा पेमेंट मिलेगा तो जा सकता है, क्योंकि इंसान है, पैसे के लिए खेलता है, नाम के लिए भी खेलता है, पैसा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा तो जा सकता है। चलो फिर खत्म करें। हाँ, कुछ बचा है मतलब आपको कुछ सवाल है तो आंसर करने के लिए रेडी हो, मेरे को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर हमको सुबह तक यहीं बैठना पड़ेगा। इतने सारे सवाल है क्या आपका पास? सवाल नहीं, आपकी एनर्जी इतनी बची है ऐसा है? नहीं, मतलब ये तो क्रिकेट के बारे में हम ज्यादा सोचता है ना, तो बोलने के लिए भी ज्यादा रहेगा ना, मैचेस भी ज्यादा देखता है, तो इतना मतलब अगर हम नहीं खेल रहे तो भी हमारा ऑपोजिट प्लेयर्स का भी मैचेस हम देखते हैं, क्योंकि वो जो एक एक बड़े बड़े प्लेयर क्या डिसीजन लेता है वो सब देखने के लिए हमको अच्छा लगता है। एक एक प्लेयर एक एक सिचुएशन में क्या शॉट खेलता है, तो वो सब देखने के लिए हमको अच्छा लगता है, हमको आइडिया भी मिलता है ना।
तो सोच तो अंदर चलते ही रहता है, तो वो बोलने के लिए मौका मिलेगा तो बोलते ही रहेगा। वैसे भी मैं कभी भी सोचा ही नहीं इतना बड़ा पॉडकास्ट में, नहीं तो इंटरव्यू में मेरे को मौका मिलेगा। तो जितने सारे बड़े बड़े प्लेयर आपने पॉडकास्ट किया है, तो उसके बीच मेरा भी नाम आ गया, तो मेरे लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, ओवरवेल्म्ड। कुछ अपने केरला फैंस के लिए अपने लैंग्वेज में कुछ मैसेज? केरला फैंस मतलब केरला फैंस मेरे को इतना अच्छा मतलब नहीं लग रहा है। केरला फैंस सोचते हैं मेरे को जितना चांस मिला पूरा लेग में मिला है। लेग तो है, मगर लेग आने के लिए थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि केरला में मैं तो बेस्ट नहीं हूँ। तो केरला लोग सोचते रहे यार ये क्या प्लेयर है, उसको तो कुछ चांस में मिला है, वो उस कॉन्टैक्ट में मिला है, वो अभी भी ऐसे ही सोच रहा है। अभी भी मैं केरला जाएगा तो मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में, मतलब मैंने बोला ना एवरेज प्लेयर ही हूँ। मतलब अगर बैटिंग है तो बॉलिंग है, तो भी बैटिंग तो अभी करता ही नहीं, बस बॉलिंग ही कर रहा हूँ। तो केरला में बहुत सारे बॉलर्स है, तो केरला में इतना बड़ा वैल्यू नहीं है। हीरे का वैल्यू नहीं है केरला में? ऐसे नहीं, मतलब केरला में मेरे इतना इम्पैक्ट भी नहीं हो रहा है खेलने के लिए, तो इधर तो हो रहा है। तो जहाँ चल रहा है चला रहे हो, जहाँ चल रहा है चला रहे हो। वो जो एक बोल है ना, अगर ये छोटा 10 रुपए का पानी का बोतल छोटा दुकान में 10 रुपए का मिलेगा, बड़ा 5 स्टार में जाएगा तो 50 रुपए देना पड़ेगा। ऐसे ही है, केरला में जाएगा तो वैल्यू है ही नहीं, तो बाहर जाएगा तो सेम ही है, मगर वैल्यू तो थोड़ा अच्छा है, तो बाहर ही कर लो। अच्छी, ये तो अच्छी, मतलब आप मानते हो कि मेरे को लगता है मेरे पास क्या चीज है वो केरला से अच्छा वैल्यू मेरे को बाहर मिलेगा, बाहर मिल रहा, तो उधर ही खेलेगा तो अच्छा है ना। अगर केरला जाके अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो भी मतलब मेरे को आगे जाने के लिए कोई मतलब फायदा नहीं होगा वो, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाहर ही खेल रहा हूँ मैं। ഫോർ കേരള ഫാൻസ് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല്, ഇവരിപ്പം മഹാരാഷ്ട്ര ആ ബേസ്ഡുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ അത്രയും നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ വെറും 1-2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ ടൂർണമെന്റ്. പക്ഷെ അവരെന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം കളിക്കാതെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം സമ്പാദിക്കാനും പറ്റും, പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും, നല്ല ഫെയിമും കിട്ടും. ദെൻ യു വിൽ ഫീൽ സോ ഗുഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഒരു ഫീലിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കതൊരു ലൈഫ് ലോങ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പം മാക്സിമം എല്ലാവരും ഹാർഡ് ടെന്നീസ് കളിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ബോളേഴ്സ് ആയാലും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായാലും വലിയ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ ടൂർണമെന്റ്സ് കളിക്കാൻ നോക്കുക. അത് केरला मैं आपको बोलता हूँ वो इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि केरला में मैं तो इतना बेस्ट नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं जो पोजीशन में अभी हूँ, अब अगर मैं पहुँच गया तो जितना सारा अच्छा प्लेयर है केरला में सबको आ सकता है ना. तो मेरे को लगता है अगर सब लोग देखे, अगर ये आशिक को ऐसा कर सकते तो हमको भी कर सकते हैं, क्योंकि आशिक तो इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, फिर भी उसने किया तो हमको भी कर सकता है. तो ऐसे भी मेरे को देख के उन लोग इंस्पायर होके बाहर आने के लिए उसको मन आएगा, तो मेरे को थोड़ा कुछ लगेगा. चलो ठीक है, बेस्ट. अच्छा ही बोला ना आपने, मैं कन्वर्ट करवाऊंगा अपने. मेरे 2-3 केरला वाले दोस्त है, ऐसा मान पड़ा गाली देके गए पूरा.